Yes. Good afternoon, Jannat. Good afternoon, Ritik. Good afternoon, Jyoti. Good afternoon, Shraddha. All of you are very welcome in the class. All of you are very welcome in the class. So, yeah. Good afternoon, Pankaj. So, I think now we should start the class without much ado. Good afternoon, Yash Vardhan Tiwari. Okay, I think all technical setup is being done. All right, all right. We should start the discussion now. So, first topic of the day is BBX11 gene. BBX11 gene, that is science and tech topic. So basically, what happens? Researchers at Indian Institute of Science, Education and Research, they have identified a BBX11 gene. This gene is found in plants. This gene has been found in plants. Now it has been discovered by the humans. Now we humans get to know about this gene. So it is identified using biochemical genetic molecule technique. So basically on these plants, the small pores shown on the leaves are basically the this BBX11 gene. So what is its role? It's facilitate in the greening of the plants by regulating the role of protochlorophyllide. See, proto something related to light, chlorophyll something related to chlorophyll. So all of we knows about process of photosynthesis. The process of photosynthesis we all know about that. By this sunlight, the plants use this sunlight as energy and convert it into its food, that is sugar, and in this process consume carbon dioxide and release oxygen. We have all covered in our textbooks in 6th onwards NCRT. So this chlorophyll is the green pigment. Chlorophyll, this is the chlorophyll. This is the green pigment in the leaves, which store this sunlight, which store this photo, or you can say sun energy from the sunlight, and helps the plants to convert this or utilize this energy to produce food. This protochlorophyllide, it is an intermediate in the process of manufacturing, of chlorophyll. It is an intermediate. Just like, suppose, between you and Labasana, between you and Labasana, coaching institutes act as an intermediary. You come to coaching institutes, get the coaching, get the education, then visit to, after clearing the examination, Labasana. Similarly, this is the intermediate in the production of chlorophyll. And if in this process, see, first are the enzymes, who are the manufacturers, of chlorophyll. They use protochlorophyllide in manufacturing of chlorophyll. You can take the example of cooking. In cooking, what happens? In cooking, what happens? You use different intermediaries like vegetables, spices, salt,
cooking oil, etc. Then produce the favorite dish of your choice, maybe parathas, maybe chole bhature, maybe masala dosa, maybe chicken, etc. Whatever you want to cook, these raw vegetables act as intermediary. Similarly, protochlorophyllide is acting as intermediary for production of chlorophyll. If the enzymes are greater in a plant, then greater number of protochlorophyllide would be required. Similarly, if the eating members in your house are greater, then more number of raw materials, spices, cooking oil, etc. is required. So same is here for the amount of protochlorophyllide requirement. So this is how you can see this BB gene is found in this protochlorophyllide manufacturing. This is the gene from which this protochlorophyllide is made. So what is the role of this protochlorophyllide? It able to green the leaves, to give this color of green to the leaves. This role of protochlorophyllide is. So basically production of chlorophyll depend on this protochlorophyllide. If it is less, then plants would not able to manufacture food. If it is greater, then plants would bleach means removal of the color, that is removal of the chlorophyll. This process is known as photo bleaching. This is how you can see, this is how plants get bleached. So now that is why this BBX gene understanding is beneficial. Why? Because our country is an agriculture country. More than 50% of the population survives on the agriculture. And if we know that how this photochlorophite is going to be manufactured, then we can regulate its supplies by artificial injections, by artificial transfer of this gene to the plants, etc. Then it would optimize the plant growth. If there is drought conditions, then its supply could be increased. If there is like excessive rainfall, etc., then supply would be decreased. So that is why, because of changing climatic condition, in one year we have drought, in another year we have flood. In these situations, this photochloride regulations could help us to make our agriculture adaptable to the harsh climatic conditions. It can survive the harsh climatic conditions. So it would optimize the plant production whether it is drought or whether it is high rainfall season. In both conditions it would manufacture. So basically application of this kind of biotechnology surely help to increase the crop yield. Let me give you an example. I have observed and even interviewed informally many farmers, whether you are using soil health card scheme of the government or not. Few said yes, few said no. Those who are using, they said we regularly check our this soil components with the soil health center and get the profile of the soil, which nutrients it is rich in, like phosphorus, potash, zinc, etc., which nutrients it is deficient in, iron, calcium, etc. Then we apply the appropriate fertilizers. In this process what is the result? The fertilizers consumption is the lowest, so it means soil fertility is maintained. It means lesser prices being paid, lesser cost to be bear to purchase these fertilizers. Then thirdly, their plants growth is quite sturdy, quite effective in resisting droughts attack, pests attack, any storm attack, any rainfall attack, etc. So that is why they are able to get higher produce at lower cost because of this soil health card scheme. And those who said no bear extra cost, reduce their soil fertility and also get the lower yield. So this applications of science and technology in agriculture is utmost important. Utmost important. So that is why this application is quite important, and this importance could be realized by the youth of our country. जो किसान के बच्चे पढ़ लिख गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है कि they must use this latest technology in their fields. They must experiment with this latest technology.
एप्लीकेशंस। उनको शर्म नहीं करनी चाहिए खेतों में काम करने की कि हम पढ़ लिख गए तो हम खेतों में काम हमें नहीं करना चाहिए एक्सेट्रा। दिस काइंड ऑफ रिग्रेट, शेम एक्सेट्रा शुड नॉट बी देयर। दे शुड डू द फार्मिंग विद प्राइड एंड बाय यूजिंग दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे शुड earn a livelihood and they should live a meaningful life. So this is the prelims question of you. Kindly answer in the live chat. Let me see your doubts and comments. So good afternoon Charan. So good afternoon Anuj, Jogender, good afternoon. And because you were not able to take class, don't worry Jogender, you can see the recordings after the live class. It happens sometimes, timing do clash. And yeah, constant motivator, good afternoon. So yeah, this class is live. And thing is, let me tell you, those students who do not know that the class timing has been changed. Earlier it is used to held on Wednesday and Sundays on 9 a.m. Now it is held on 2 p.m. Okay, so in case you get up early in the anticipation of the class at 9 a.m. and then you do not get the class, don't get offended because class timing has been changed, because I have the governance classes at 2 p.m. also. So in order to synchronize my schedule, this timing is been reshuffled. So moment those classes get over, we would get back to the 9 a.m. schedule. Okay. Yes. So answer it. I think all of you have read the question. So answer is fast. Let me move towards the next topic. Till then you answer. Interconnect usage charges. So what is this interconnect usage charges? Let me tell you. Suppose you have Geo SIM. Okay, you dial a number on Airtel Airtel number receiver. You dial a number. Okay, so this is suppose Geo user, and this is Airtel user. So Geo phone would give a signal to Geo network, Geo tower. Then its mobile center would process the information. Then receiving center would process the information. Then this is the Airtel tower. This is the Airtel tower. Then this call would be received by the Airtel tower, and then this would be redirected to Airtel user. So basically you are using the Airtel tower services. So because of it, you have uh, Geo Geo company has to pay 6 paisa per second to Airtel for using its tower service. That is basically the interconnect services. तभी आप देखोगे जब आपके मोबाइल प्लान्स आते थे, अब तो ऐसे नहीं आते, पहले आते थे. In the earlier days what happens, there is unlimited calling between Airtel to Airtel, Vodafone to Vodafone, Jio to Jio, etc. But you would be paid, you have to be charged for any Jio to Vodafone or Airtel to Vodafone or Vodafone to Idea, etc. calling. So because of the factor of usage of others companies infrastructure, such charges has to be paid. That is why these operator also used to charge from the consumers. तो वो खुद पे करते थे एक दूसरे को, तो इसलिए कंज्यूमर से भी चार्ज करते थे 50 पैसा पर सेकेंड, 1 रुपीज पर सेकेंड एक्सेट्रा. तो उसके बाद क्या हुआ कि व्हाट ट्राई हैज फाउंड इन इट्स डाटा एनालिसिस कि मोर और लेस सबके बिल्स सेम ही आ रहे थे. मतलब कि मान लो कि वोडाफोन को एयरटेल को 50 करोड़ की पेमेंट करनी है बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ एयरटेल टावर्स, बिकॉज वोडाफोन यूजर्स हैज मेक कॉल टू एयरटेल यूजर्स. ठीक है, और एयरटेल ने की यूजर्स ने भी वोडाफोन की लगभग 60 करोड़ की वो की है, कॉलिंग की है. तो ट्राई ने फाउंड किया क्योंकि ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं 50 और 60 करोड़ में. There is no basic difference between 50 and 60 crores. Why not this interconnect charges should be removed? फालतू में अकाउंट्स रखने पड़ते हैं, फिर सेटल करने पड़ते हैं. वोडाफोन कहता है मैंने तेरे 50 करोड़ देने हैं, तूने मेरे 60 करोड़ देने हैं, तो 10 करोड़ मुझे दे दे. तो फालतू के काउंटिंग करते हो, कुछ करते हो, तो कहता है कि ज्यादा सफा है नहीं. तो ट्राई हैज प्रपोज्ड दैट फ्रॉम दिसंबर 2019 this interconnect charges would be removed. This interconnect charges would be removed.
ठीक है, तो अभी सभी अब somebody saying A, B, A, C. Let me give you the answer. Yeah, answer is B because it is not in Kanpur, IIT Kanpur. It is Institute of Science and Research. आंसर इज बी। ठीक है, तो इसीलिए ट्राई ने बोला कि 2019 से चार्जेस हटा देंगे। बट व्हाट हैपेंस, उस वक्त जियो नहीं था, उस वक्त जियो आया नहीं था। There were earlier companies like Reliance Communications, Tata Docomo, etc. At that time when the TRAI has put the regulations. In 2017, Jio has come in. So Jio has introduced, Jio knows that this interconnect charges is going to be removed from 2019. उसको पता था कि 2019 से ये कोई चार्जेस देने नहीं, तो उसने आते सार क्या किया कि it has introduced unlimited calling to any network, unlimited calling to any network. उसको पता था कि 2 साल तक मुझे ये 6 पैसे के चार्जेस खुद को बियर करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे कोई चार्जेस बियर नहीं करने। तो इससे क्या हुआ, एक अनोमली पैदा होगी। दिस अनोमली हैज बीन क्रिएटेड इन द मार्केट। व्हाट अनोमली इट वाज कि सभी ने जियो की सिम परचेज करनी स्टार्ट कर दी, सभी ने डुअल सिम रखनी स्टार्ट कर दी अपने मोबाइल में, एक जियो की, मान लो एक वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल एक्सेट्रा की। तो जियो का रिचार्ज कराते थे और जितनी कॉलिंग करनी होती थी जियो से करते थे, और एयरटेल का सिर्फ नंबर सिर्फ रिसीव करने के लिए भी चलो पुराना नंबर पड़ा है तो उसके लिए रख लेते थे। तो जियो के नंबर से उन्होंने कॉलिंग करनी स्टार्ट हुई। तो अब जो एयरटेल है, वोडाफोन है, उनको नुकसान होने लग गया बिकॉज उनके नेटवर्क से अब आउटगोइंग कॉल हो नहीं रही, तो उनको रेवेन्यू नहीं आ रहा। सेकंड, अब 2019 से ये 6 पैसा वाली जो इंटरनेट चार्जेस थे वो भी रिमूव होने वाले थे। तो जो रिसीव करने के चार्जेस, जो रिसीव करने से उनको पैसा मिल रहा था, रेवेन्यू दे आर गेटिंग फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ द कॉल, दे आर आल्सो गोइंग टू लूज बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉल्स वर फ्रॉम जियो टू अदर नेटवर्क लाइक एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया एक्सेट्रा। तो इसीलिए फिर दे हैव लोबिड और दे हैव सजेस्टेड टू ट्राई नॉट टू discontinue interconnect charges by 2019. तो ट्राई बोली yes, okay, we are giving one more year, we would discontinue from January 1, 2021. ये एक साल उन्होंने डिले कर दिया ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ एयरटेल, वोडाफोन एक्सेट्रा कि हम इतना सारा लॉस कर रहे हैं क्योंकि पहले जियो ने प्राइसेस बहुत कम कर दिए। पहले 250 रुपीज पर जीबी डाटा आता था, जियो के आने के बाद ये 10-13 रुपीज पर जीबी डाटा रह गया। तो कह रहे कि पहले ही हम इतना रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, उसके बाद तो और भी ज्यादा होगा। जियो से पहले हेलो ट्यून के एयरटेल 100 रुपीज या 30 रुपीज पर मंथ इस तरीके से चार्जेस करती थी, जियो ट्यून ये सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए एयरटेल, वोडाफोन हैज आस्क्ड ट्राई टू रिमूव, नॉट टू रिमूव दिस इंटरनेट चार्जेस। अब ट्राई ने इसको रिमूव कर दिया है। क्यों रिमूव कर दिया है? तो उसने कहा है कि बस आप बिल करो, कोई अकाउंटिंग रखने की जरूरत नहीं है। और जियो ने फिर क्या किया कि अब इंटरनेट उसको चार्जेस देने पड़ रहे थे। उसको पहले तो ये था जियो को, मुकेश अंबानी को, कि ये 6 पैसा की मुझे कोई चार्जेस देने नहीं, तो व्हाई नॉट आई ट्रांसफर दिस बेनिफिट टू द कंज्यूमर। तो बाद में मुकेश अंबानी ने सोचा कि अब 6 पैसे देना पड़ेगा, तो उसने 3000 रुपीज या 1000 रुपीज, 1000 मिनट पर मंथ की लिमिट लगा दी टू फॉर कॉलिंग टू अदर नेटवर्क। तो उसके ये लिमिट लगानी सिर्फ जियो ने लगाई थी क्योंकि उसको पता था कि जियो से ही मैक्सिमम अदर ऑपरेटर्स पर कॉलिंग जा रही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जियो के कोई भी सब्सक्राइबर बेस पे इफेक्ट नहीं हुआ, रेदर इट्स सब्सक्राइबर बेस हैज इंक्रीज्ड. Its subscriber base has been increased despite the fact that it has put ceiling on the number of free calls you can make to the other networks. तो उसके सब्सक्राइबर्स बेस बढ़े, तो उसके बाद अब जब ट्राई ने बोल दिया कि जियो ये इंटरनेट चार्जेस नहीं लगेंगे, तो अब वो बेनिफिट भी कंज्यूमर को पास कर दिया जियो ने कि नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ कॉल्स टू एनी नेटवर्क ऑफ योर चॉइस। सो क्योंकि अब ये जो है रेवेन्यू न्यूट्रल हो चुका है, मतलब एयरटेल से जियो, जियो से वोडाफोन, वोडाफोन से एयरटेल, जो भी कॉलिंग हो रही है लगभग बराबर ही हो रही है। मान लो 50 मिलियन कॉलिंग वोडाफोन से एयरटेल हो रही है, तो 50 मिलियन कॉलिंग एयरटेल से जियो हो रही है, 60 मिलियन शायद जियो से वोडाफोन हो रही, तो मोर और लेस सेम है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए इस पर्पस की जरूरत अब नहीं रही। दैट इज व्हाई दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर। तो रिलायंस जियो वैसे तो नेट पेयर था, तो थोड़ा बहुत उसको बेनिफिट हो जाएगा। वोडाफोन वाज द नेट रिसीवर ऑफ द कॉल्स, सो लिटिल बिट गेन इट वुड आल्सो गेट, सो बोथ वुड बी गेट, बट दिस
भारतीय एयरटेल वुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस मूव बिकॉज उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग लगभग बराबर थी। तो सो व्हाट शुड बी डन फॉर द टेलीकॉम सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इश्यूज भी हैं और उसके सॉल्यूशंस भी हैं। बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर इज क्वाइट क्रिटिकल पब्लिक यूटिलिटी। टेलीकॉम के बिना आज की दुनिया में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया बिकॉज मोबाइल सर्विस डाटा सर्विस इज बीइंग प्रोवाइड बाय द टेलीकॉम कंपनीज। तो आप देखोगे चाहे जोमेटो के डिलीवरी बॉयज हो या ओला उबेर के कैब्स हो, दे आर यूजिंग स्मार्टफोन्स रनिंग ऑन द टेलीकॉम सर्विस ऑफ मोबाइल कॉलिंग एंड इंटरनेट सर्विस। तो उनके बिजनेस खत्म हो जाएंगे। The numerous shops has put Paytm, Google Pay, Phone Pay, QR codes, उनकी बिजनेस खत्म हो जाएगी अगर affordable data and quality services are not there. So that is why telecom health is important. This telecom health can be promoted only by the competition, only by the competition. Or because of this geo monopolistic tendency, it wants to create a monopoly in the market कि सिर्फ जैसे कोल्ड ड्रिंक मार्केट में है ना कि दो ही प्लेयर हैं, पेप्सी कोका कोला, वैसे ही वो मार्केट क्रिएट करना चाहता है कि एक या दो ही प्लेयर हो टेलीकॉम मार्केट में, कि जो थम्स अप हो वो भी कोका कोला की है, फंटा मिरिंडा एक्सेट्रा, ऑल काइंड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय आइदर पेप्सी और कोका कोला। तो उसी का कंपटीशन काइंड ऑफ वो क्रिएट करना चाहता है मार्केट में। तो वो दैट इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज उसमें फिर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। 1 या 2 रुपए में पेप्सी कोका कोला बन जाती है और 20-20 रुपए में कंज्यूमर का वो चिपकाते हैं। They are manufacturing the Pepsi Coca-Cola in rupees 1 or 2 and they are charging high rates for the same product. तो ये कंडीशन ना हो तो ये it is not the good thing for the telecom sector. That is why this telecom health is utmost important. तो उसकी वजह से अभी स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना है 2021 का, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था 5G। तो उसकी जो प्राइसिंग है दैट शुड बी फेयर, कि उससे ना तो टेलीकॉम कंपनीज को दिक्कत हो, दे शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन गेटिंग टेलीकॉम स्पेक्ट्रम्स, नॉर इट शुड बी एक्टिंग एज अ बैरियर फॉर द न्यू कंपनीज। कोई नई कंपनी एंटर करना चाहती है तो उसके लिए बैरियर भी ना हो, कितनी हाई प्राइस है कि वो बैटिंग ना करे। तो रिलायबल कॉल क्वालिटी, कंपिटिटिव टैरिफ्स, दीज आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। और अब हमें 2G एंड 3G यूजर्स को 4G हैंडसेट्स पर प्रमोट करना जरूरी है, तभी एक नेटवर्क एफिशिएंसी आएगी, एक लार्ज स्केल इकोनॉमीज आएगी। एंड आल्सो we need to ensure quality service, affordable tariff and adequate choice to the consumers. adequate choice वही आगे मल्टीपल प्लेयर्स हो, affordable tariff हमें करना है, क्योंकि कई जो जैसे एयरटेल है या वोडाफोन है वो कह रहे हैं कि टैरिफ शुड बी इंक्रीज, मोबाइल चार्जेस शुड बी इंक्रीज, बट इट शुड नॉट बी इंक्रीज बिकॉज वी नीड टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 60% से ज्यादा मिडिल क्लास है, 20% से ज्यादा पुअर है, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी जरूरी है। तो उनको जो रिवेन्यू मॉडल या बिजनेस मॉडल जो डेवलप करना है टेलीकॉम कंपनीज को, वो जियो पैटर्न पर ही डेवलप करना होगा। क्या कि आप देखो, दो तरीके की चीज होती है, एक जैसे आप लगा लो चाइनीज कंपनीज के मोबाइल है, वीवो, MI एक्सेट्रा। दूसरा है एप्पल का। एप्पल का फोन क्या है, 17,000 में मैन्युफैक्चर होता है, 1 लाख रुपए में बिकता है। इन वीवो MI के मोबाइल जो है अराउंड मान लो 15,000 का मोबाइल है, 10-11,000 में बिल्ड होता है और इसको 15,000 में बेचते हैं। ठीक है, सो जो ये प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कहां से कमा रहे हैं, बाय लार्ज सेल, 30% सेल, 40% ऑफ द मार्केट सेल कंट्रीब्यूटेड बाय दीज कंपनीज। एप्पल कहां से कमा रहा है, एक प्रोडक्ट के हाई प्रॉफिट से कमा रहा है। जितने ये 10 प्रोडक्ट बेच के कमाएंगे उतने तो एप्पल एक फोन बेच के कमा लेता है। तो इसीलिए जो एप्पल का मोटिव है वो प्रॉफिट मॉडल है, कि 1% या 2% लोगों को बेचो लेकिन इतने हाई प्राइस में बेचो कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ जाए। तो ये मॉडल हमें टेलीकॉम सेक्टर में नहीं लेना, हमें यही मॉडल लेना है कि आप क्वालिटी अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड करो बट टू द मासेस, पूरी लोगों को प्रोवाइड करो। ये सस्टेनेबल मॉडल है फॉर द टेलीकॉम सेक्टर। तो इसीलिए जो इंडिया मास मार्केट है वॉइस एंड डाटा सर्विसेज के लिए, इसीलिए जरूरी है कि हम डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए दिस मॉडल शुड बी अडॉप्टेड। Then consumer should be migrate to the 4G services। तो अफोर्डेबल हैंडसेट देके 2,000-3,000 रुपीज के हैंडसेट देके उनको 4G सर्विसेज में मूव ऑन करने की जरूरत है। एंड वी नीड टू बी रेडी फॉर द 5G आल्सो बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल 5G services in previous class। And also we need to revise BSNL and MTNL because these are also essential for security purpose, strategic purpose। And
we need to ensure the good health of the telecom sector. So now coming to the next topic, immigration. तो इसका क्या है, देखो, लेट मी टेल यू लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट दिस टॉपिक फर्स्ट. आपको मैं कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं, देन यू वुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तो आपने अपने स्कूल डेज में यू मस्ट हैव राइट एसेज ऑन द टॉपिक ऑफ ब्रेन ड्रेन, on the topic of brain drain, how people of this country, the skilled labor, like those who have studied in IITs, IIM, AIMS, etc., they move out to other countries like UK, USA, etc. They are not only get job there but also they live permanently there. तो उसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है. जो हमारे देश का ब्रेन है, मतलब वहां पर जाके काम कर रहा है. यू कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ सीईओ ऑफ गूगल, दैट इज इंडियन. सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज आल्सो इंडियन, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई. सीईओ ऑफ एडोब इज आल्सो इंडियन, एटसेट्रा. मैनी डॉक्टर्स वर्किंग इन द यूएसए आर आल्सो इंडियंस. सो दिस इज बेसिकली यू हैव बीन टॉट इन द स्कूल्स. तो जब मोदी जी आए, मोदी जी ने एक बात कही थी कि इफ आई हैव बीन, कुछ जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है, तो कुछ लोग इसको आधा भरा देखते हैं, कुछ लोग इसको आधा खाली देखते हैं. सम सीज एट हाफ फिल, सम सीज एट एज हाफ एम्प्टी. मैं इसको पूरा भरा हुआ देखता हूं कि आधा पानी से भरा हुआ और आधा हवा से भरा हुआ. आई सी इट फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड बाय एयर, हाफ फिल्ड बाय वाटर. बेसिकली ऑप्टिमिज्म इज द एटीट्यूड ऑफ द मोदी जी. तो वो इस ब्रेन ड्रेन फिनोमेना को ब्रेन गेन या ब्रेन बैंक की तरह देखने लगे कि जो ये स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीएस एक्सेट्रा आर मूविंग टू दीज कंट्रीज, दे आर एक्चुअली द एसेट नॉट द लायबिलिटी. दे आर एक्चुअली द बेनिफिट नॉट द लॉस. हाउ? क्योंकि वहां पे जाके देखो वो उन कंपनीज को कंट्रोल कर रहे हैं, वो इंडियंस के हाथ में है. कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन गई है यूएसए की, या हमारे लिए वो लॉबी करते हैं. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सिविल न्यूक्लियर डील के लिए उन्होंने लॉबी की थी. तो दिस इज हाउ दे हैव बीन गिविंग बेनिफिट टू द इंडिया. हमने इमिग्रेशन में भी वो इंडियन डायस्पोरा के टॉपिक में भी पढ़ा था कि हाउ दे आर बेनिफिटिंग द इंडिया बाय सेंडिंग द मनी आल्सो एंड द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस. तो ये ब्रेन गेन का एग्जांपल बन गया कि भाई जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, होने दो. अगर जा रहे हैं तो जाने दो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो जो ये आर्टिकल है वो हमें बताता है कि जो हमारा बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट माइंड है, जो इजराइल जा रहा है, वहां पर पीएचडी कर रहा है, वहीं पर रह रहा है, वहीं पर रिसर्च कर रहा है, वहीं की इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है. तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसका एक्चुअली में डिजास्टरस और नेगेटिव इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए, पॉलिटी के लिए. इसका अच्छा इफेक्ट नहीं है. दिस इज नॉट अ गुड थिंग. वी शुड स्टॉप इट और रेगुलेट इट और प्रिवेंट इट्स आउटफ्लो. तो ये आर्टिकल उस नैरेटिव को, उस पॉइंट को, ब्रेन गेन के पॉइंट को काउंटर करता है. कैसे काउंटर करता है? लेट अस सी दिस इन द सब्सिक्वेंट पॉइंट्स. तो इसमें बताते हैं कि बिटवीन 1996 टू 2015 toppers in class 10 and class 12, they have not only migrated to USA but also they have get employment there and they are also staying there. तो आपके भी कितने सारे फ्रेंड्स होंगे, शायद आपने देखा हो, या आपके सीनियर्स होंगे जो आपके टॉपर्स होंगे क्लास के, वो उनके ड्रीम होता है कि यूएसए में जाके पढ़ना है या वहां पे जाके काम करना है. दे मे गो टू आईआईटीज, दे मे गो टू आईआईएम्स, बट अल्टीमेटली ड्रीम इज टू वर्क इन द यूएसए. तो even this has been proven by the fact that the high class private schools like Delhi Public School, like Goenka schools, etc., their toppers are also not only going out of India but also staying there and they are pursuing bachelorate there. Okay. And इसके implication क्या है? देखो, हमने पढ़ा कि $70 billion as remittance around we received from the Indian diaspora. But these students, these migrants, they also consume this forex of our country. Because अगर मान लो
मान लो मुकेश अंबानी के बच्चे थे, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी एक्सेट्रा, दे आर स्टडिंग इन अमेरिका, यूएसए। तो मुकेश अंबानी यहां से डॉलर भेजेगा ना उनके खर्चे के लिए, उनकी फीस के लिए, उनकी अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, उनके फूड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा के लिए। तो वो फॉरेक्स भी कंज्यूम हो रहे हैं टू द ट्यून ऑफ $5 बिलियन पर ईयर। तो ये सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है। सेकंड, wealthy families from big city, they want that not only their children study there but also settle there। देखो वहां पे बैचलरेट कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर पीएचडी और ग्रेजुएशन एक्सेट्रा, दैट इज फाइन। दे शुड रिसीव द स्किल्स फ्रॉम दीज कंट्रीज एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग हेयर। जैसे चाइनीज के लीडर थे माओ जेडंग, वो कहते थे कि आप बेस्ट ऑफ द क्लास स्किल्स और एजुकेशन पूरे वर्ल्ड से लेके आओ, बट यूटिलाइज दोज एजुकेशन, दोज नॉलेज, दोज स्किल्स इन बिल्डिंग चाइना। तो ये माओ जेडंग बोलते थे। तो यही अप्रोच इंडिया की भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी अप्रोच क्या होती जा रही है कि वी वांट आवर चिल्ड्रन टू सेटल देयर ओनली, एंड that is why NRI are becoming non-returning Indians. They just want to settle there and contributing there to their host country, not to the India. And also there is emerging category that some community in India is feeling alienated. They are feeling uh, they are feeling dissatisfaction. They are feeling fear, anxiety, etc. in India. That is why they also want to leave India. तो आपको वो आमिर खान की डायलॉग तो याद होगा कि उसकी बीवी कहती है कि मुझे इस देश में डर लगने लगा है और मैं ये देश छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज आल्सो देयर इन सर्टेन कम्युनिटी। ये आर्गूमेंट मुझे सही नहीं लग रहा, दिस इज नॉट एन करेक्ट आर्गूमेंट, बट सर्टेनली ये आर्गूमेंट दिया है ऑथर ने, तो हम क्या कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो सुपर रिच है वो क्या चाहते हैं, दे वांट टू गेट सिटीजनशिप ऑफ स्वीडन, they want to get citizenship of UK, they want to get citizenship of USA, etc. But they want to do business in India because India is an emerging economy. I have told you the concept of 8% growth rate in the previous class. So 5 साल में पैसा डबल होगा यहाँ पे, so huge profit they can make. So they want to do business in India. So that is why they are using the OCI card, overseas citizens of India card, to invest in India. But citizenship किसकी रखनी है, फॉरेन कंट्रीज की। दैट इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक कि आप जब इंडिया से पैसा कमा रहे हो, यहाँ का खा रहे हो, तो यहीं की सिटीजनशिप रखो, यहीं के लॉज पे सब्जेक्ट हो। जैसे इसका एग्जांपल दूंगा मैं, अक्षय कुमार, कैनेडियन सिटीजनशिप कनाडा की, लेकिन पैसा कहाँ कमाना है, इंडिया में, काम कहाँ करना है, इंडिया में, बाय दी ओसीआई कार्ड। कटरीना कैफ एक्सेट्रा, विजय माल्या, नीरव मोदी एक्सेट्रा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको राइट नहीं है, दे डू हैव द राइट टू गेट सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री ऑफ देयर चॉइस एंड आल्सो अवेल द फैसिलिटीज ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बट बस वही बात हो जाती है कि दोनों हाथ में लड्डू रख रहे हो कि उस सिटीजनशिप के फायदे आप ले रहे हो कि उस सोशल सिस्टम, जैसे स्वीडन में जाओगे बेस्ट इन क्लास हेल्थ केयर सिस्टम, बेस्ट इन क्लास एजुकेशन सिस्टम यू वुड बी गेटिंग इन दीज कंट्रीज। तो यूके में जाओगे बेस्ट इन क्लास लिबर्टीज आप फाइंड करोगे। आप जब वहां के प्रधानमंत्री को गाली दे दो कुछ नहीं बोलेंगे वहां पे। और यहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हो, बेस्ट इन क्लास प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो, तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, दैट इज आल्सो नॉट गुड। दैट इज व्हाई वी नीड, देखो जो ये आउटफ्लो है उसको रोका नहीं जा सकता और रोकना चाहिए भी, बट हमें क्या करना चाहिए, वी शुड क्रिएट इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स फॉर आवर इंडियंस who are absolutely talented, who are absolutely meritorious, absolutely skilled. They should stay in our country and contribute to the nation building exercise, कंट्रीब्यूट टू दी नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज। हमें इंसेंटिव्स क्रिएट करने हैं ताकि वो खुद आए, अपनी मर्जी से आए और यहाँ पर काम करें। जैसे विजय शेखर शर्मा पहले यूएसए में काम करते थे, फिर उन्होंने पेटीएम यहाँ पे डेवलप की। सचिन बंसल वो भी अमेजोन के एम्प्लॉय थे, यहाँ पे फ्लिपकार्ट डेवलप की, खुद आए वो अपनी मर्जी से। तो इस तरीके से हमें इंसेंटिव्स क्रिएट करने हैं सो दैट दे कैन कम एंड बिल्ड द नेशन। कि हमें स्वदेश मूवी की तरह, शाहरुख खान की तरह इमोशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है नेशनलिज्म सेक्टर की। उनको खुद ही इतना अपॉर्चुनिटी दिखे इंडिया में, इतनी कंडीशंस अच्छी दिखे कि वो खुद ही आए और खुद ही यहाँ पर डेवलप करे। दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स वी नीड टू क्रिएट। So this is the interview question, little bit controversial question would also always be asked in interview, just to check your objectivity, impartiality, neutrality, etc.
So next topic again is of science and tech, that is mock egg. So IIT Delhi has secured first prize in innovative for sustainable development goal by the UNDP to develop a mock egg. They have got the 5,000 USD dollar. What is this mock egg? So basically it is a vegetarian egg. It is being produced from various plants protein. It looks like egg, it tastes like egg, its texture is like egg, but it is vegetarian. So let me ask you, you can see in this picture how this egg look like. तो वैसे completely तो नहीं दिखता, but काफी हद तक दिख सकता है. This is the team which has won the prize. So let me ask you, what are the what are the plants material used in producing this smoke egg? You have to guess it. अब guess करो कि कौन सी प्लांट मटेरियल को यूज किया गया है, कौन सी क्रॉप को यूज किया गया है इन प्रोड्यूसिंग दिस मोक एग. टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड आल्सो यू कैन आल्सो मेंशन which vegetables, which plants etc are being used in producing mock chicken and mock fish, mock chicken and mock fish, or you can simply say mock meat. In mock meat, which plant materials are used? This could be asked in UPSC also. So this is how omelets are being based. So mutton, turkey, pork is also being developed, and even McDonald's is saying that I am going to use in my burgers the mock meat that is based from the plants material. Okay, so its texture, nutrition is also same as that of egg, and it is not contain any toxicity, any animal disease etc, and it is also going to give proteins to the vegetarian also. So basically it would reduce the animals cruelty, because large number of chicken, goats etc get killed to satisfy our human diet cravings etc. So it would reduce the animal cruelty. Then it would give a non-veg feeling to the vegetarians. Then it would also provide affordable protein to the masses. So it would help to achieve sustainable development goal of zero hunger and good health being etc. And so in this manner this development is going to help us. So this is the prelims question, answer it. Second question of the day. So nobody knows. मोक मीट का तो आपको गैस कर लेना चाहिए था. मोक मीट का तो बहुत इजी है. सोयाबीन, सोया चाप, you all are eating, isn't it? अगर आप सोया चाप को घर ले आओ, अगर आपकी मदर वेजिटेरियन है तो वो नहीं खा पाएंगे, उसको बाहर ही फेंक देगी क्योंकि वो मीट जैसा लगता है. तो मोक मीट सोयाबीन से बनाई जा रही है, सोया ऑयल से बनाई जा रही है. सोयाबीन इज आल्सो रिच इन प्रोटीन. एंड देयर इज आल्सो वन मोर फ्रूट, जैक फ्रूट, कटहल जिसको बोलते हैं जैक फ्रूट, दैट इज आल्सो बीइंग यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग मोक मीट. Or mock egg is produced from a pulses. Any guesses? Still? Green gram, हरी मूंगी जिसको हिंदी में बोलते हैं हरी मूंगी. कौन सी है? आज जाना किचन में, मम्मी को बोलना कि हरी मूंगी दिखाओ. Then you would get the idea how this what is this green gram is. हरी मूंगी, साबुत हरी मूंगी जिसको बोलते हैं ना, साबुत, उससे बनाया इन्होंने मोक एग. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आज किचन में जाके आपको होमवर्क करना है. यस, सोया चाप ऋतिक, तो उससे बनाया है. तो आंसर इट फास्ट. आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. प्रीलिम्स क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट हियर. आंसर इट फास्ट. Even rice flour, wheat flour, etc. is also used in producing the mock meat. How? देखो ये टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है और ये पेटेंटेड है. Basically they make crush it, then drive its oil, then from this oil they mixed with other kind of flour etc.
देन थ्रू दिस ऑयल तो कुछ आटे जैसा गुनते हैं वो प्लफ दे मेक एंड देन फ्रॉम दैट दे मैन्युफैक्चर दिस एग और मीट। ओके, तो ये जो टेक्निकल प्रोसेस है वो पेटेंटेड है और उस प्रोसेस के थ्रू वो बना रहे हैं। ठीक है, यस, ऑल ऑफ यू हैव मेंशन्ड सी, और अब मुझे आपके आंसर से पता भी चल गया कि कौन कौन मेरी क्लास लगा रहा है, तो so yes, answer is C, answer is C. So now again a science and tech topic, but with political, economic, strategic, security, etc. implications. So that is the facial recognition technology. So you may be using mobiles, specifically of Apple, which is being unlocked by front camera. Front camera would see your face and unlock it instantly. Similarly, various Chinese mobile like OnePlus, MI, etc. also offering the same technology. So this technology is being used on individual level. On individual level. Okay. So at individual level, this technology is used. But just imagine if this technology is used at mass level. How? You all know about this CCTV. This CCTV is visualizing or taking the pictures of thousands or millions of people. And what if this CCTV technology is no longer remain dumb? बुद्धू ना रहे, उसको नहीं पता कि ये कौन है वो बंदे, अगर उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस डाल दी जाए थ्रू दी पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस CCTV has the capacity to identify who the person is. कि आप जा रहे हो सड़क पे और आपके नाम उसको पता कर ले कि ये उमेश नहीं है, एज उसकी है, यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन ही इज डूइंग, एड्रेस ये है, फोन नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है. जस्ट इमेजिन दिस CCTV हैज दिस पावर. दिस इज बेसिकली दिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. दे आर यूजिंग एल्गोरिदम्स टू सो एक सेंट्रल क्या होगा, देखो ये CCTV है, they would collect the pictures, okay, they would send to the central data repository जहां पे सभी का डाटा स्टोर होगा, उनकी पिक्चर्स, उनकी डिटेल्स, नेम, एड्रेस एक्सेट्रा. they would send the data here, algorithm would process it, match it with the data, then would give it to you output कैसे, you can see this in screen कि इस तरीके से कोई डाटा होगा, आईज, फेशियल एक्सप्रेशन वुड बी मैच्ड, तो इमेज वुड सर्च इन दी डाटा और उसकी फिर वो डिटेल्स निकल आएंगी. ठीक है, तो अब ये देख सकते हो आप इस एग्जांपल में कि जैसे ये CCTV का आप देखो, यस, क्राइम रेट विल बी रिड्यूस्ड. एक्जैक्टली, देखो आप हाउ CCTV इज रिकॉग्नाइजिंग दी पर्सन. ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है. आप देखते हो उसका नेम, ब्राउन हेयर, उसके वो ब्राउन हेयर आइडेंटिफाई कर रहा है, रेस उसकी कर रहा है, स्ट्रेस्ड है कि नहीं वो भी आइडेंटिफाई कर रही है, रिलैक्स्ड है, उसके हाथ में बैग है, ग्रे हेयर मेल. तो इस तरीके से देखो सारी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर रहा है कि बैग है, कोई नाइफ है, कोई गन है, सब वो कर रहा है, बिहेवियर भी एनालिसिस कर रहा है. सो दिस इज हाउ दिस एनालिसिस इज बीइंग डन. ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया आर यूजिंग 16 डिफरेंट सच फेस रिकॉग्निशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सिक्योरिटी. दैट ज्योति हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट इट वुड एबल टू रिड्यूस द क्राइम, बिकॉज अगर मान लो किसी के हाथ में गन, नाइफ है, तो इजिली CCTV आइडेंटिफाई करके देगा, पुलिस उसको कैच कर लेगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी. ऑथेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी कि ये पर्सन कौन है, टेररिस्ट है, नक्सलाइट है, इंसर्जेंट है, वो भी पता चल जाएगा, कोई चोर है, थेफ्ट है, we can get to know about that. Then problematic thing is surveillance. ये हम थोड़ा भी पढ़ेंगे, ये problematic है. ये दोनों तो ठीक है for these two purpose, that is fine, but third thing is problematic. But जो ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी is giving so much power. But in democracy, power should be regulated. No one should have excessive power. So since there is no power, there is no regulation of, since there is no law, so that is why there is no regulation of power. तो अब ये पावर, अगर मान लो कोई जर्नलिस्ट है जो योगी गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रहा है, या कोई जर्नलिस्ट उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ लिख रहा है, तो वो
मार्केट में इस तरीके से घूम रहा है, तो जस्ट इमेजिन बाय जस्ट नोइंग दैट ही इज द पर्सन, और उसको पकड़ के ले जाएंगे। कोई विसल ब्लोअर है जिसने करप्शन एक्सपोज किया है, वो दाढ़ी मूछ लगाकर सरदार बन के घूम रहा है ताकि उसको पहचाना ना जाए, तो ये टेक्नोलॉजी ने पहचान लिया उसकी आईज रेटिना से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से एक्सेट्रा, तो उसको एकदम से पकड़ के ले जाएंगे, मार भी देंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। प्राइवेसी भी जा रही है, बिकॉज आप कुछ भी कर रहे हो, यू वुड बी अंडर बिग बॉस की कैमरे की नजर, की बिग बॉस की नजर आपके ऊपर है, उस तरीके से आपको जीना पड़ेगा कि हर चीज कैमरे पे होगा। तो ये देखो, नॉर्मल एक लड़की बात कर रही है, फिर भी उसके सारे फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा सब मेजर किए जा रहे हैं। तो इसी वजह से प्राइवेसी से भी हमारी इन्वेड कर रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से भी कर रही है। प्राइवेसी का तो मेरे को लगता है आपको आ ही गया, और ये हमारी पर्सनल डाटा को स्टोर कर रही है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कर रही है, हमारे आई रेटिनास को, फिंगरप्रिंट्स को, फेस को एक्सेट्रा, और उसका कब मिसयूज हो जाए कुछ पता नहीं। देन इट इज वायलेटिंग द राइट टू प्राइवेसी स्पेशली एट पब्लिक प्लेसेस। देखो, पुट्टू स्वामी जजमेंट थी जो 2017 में आई थी, आप सभी को पता होगा। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन दिस जजमेंट वेयर इट हैज सेड दैट प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड 21। तो अब ये सीसीटीवी कैमरा कहां पे लगे हुए हैं? पब्लिक प्लेसेस में। हमारे घर के अंदर तो नहीं लगे हुए, चलो घर के अंदर तो हमारी प्राइवेसी है, लेकिन हमारी प्राइवेसी पब्लिक प्लेसेस पे खत्म हो रही है। आवर प्राइवेसी इज गेटिंग वेनिश्ड एट द पब्लिक प्लेसेस। तो लास्ट स्केल जो ये रिकॉर्डिंग्स रखेगी, स्टोरिंग करेगी, उसकी एनालिसिंग करेगी, तो हमारी प्राइवेसी का राइट खत्म हो रहा है। हम ट्रैक किए जा रहे हैं कि हम किस प्लेस से कहां जा रहे हैं। हम देहरादून से दिल्ली आए, दिल्ली के बाद हम करोल बाग गए, सरोजनी गए, सीपी गए, कनॉट प्लेस गए एक्सेट्रा, सब हम ट्रैक होते जा रहे हैं। तो स्टेट वुड नो ऑल अबाउट दिस। देखो, सिंपली एक बंदा ट्रैफिक पुलिस पर जेब्रा क्रॉसिंग पे सर्च कर रहा है और सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होगी। सो दैट इज वाई देयर कैन बी फंक्शन क्रीप सर्विलियंस। फंक्शन क्रीप सर्विलियंस क्या होता है कि देखो, सभी के सभी लोग सर्विलियंस पे डाले गए हैं, सभी की सभी के ऊपर नजर रखी जा रही है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, जो क्रिमिनल्स हैं, जो इंसर्जेंट्स है, टेररिस्ट है, उन पर नजर रखो, ठीक है, बट उसमें क्या है कि ऑर्डिनरी पर्सन इज आल्सो सब्जेक्टेड टू स्टेट गेज। ऑर्डिनरी पर्सन इज आल्सो सब्जेक्टेड टू स्टेट गेज, सरकार की नजर में वो भी आ रहा है, तो उसको फालतू में नजर में रखना पड़ेगा। आप खुद सोच के देख लो, आपके 24 घंटे आपके माँ बाप की नजर हो, 24 घंटे आपके ऊपर बैठे हैं, क्या आप कुछ कर लोगे लाइफ में? कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे 24 घंटे सरकार आपको देख रही है, आपके पब्लिक में हो तो सीसीटीवी के थ्रू देख रही है, प्राइवेटली आप मोबाइल्स के थ्रू आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, सब नजर रख रही है। तो वी वुड बी सब्जेक्टेड टू दी स्टेट कंट्रोल। वो हमारी लाइफ डिसाइड करने लग जाएंगे कि मोदी जी को पता चल जाए कितने लोग बस यूज करते हैं, उनके लिए कोई कार्ड ले आएंगे। मोदी जी को पता चल जाए कितने लोग ई डिलीवरी सर्विस यूज करते हैं, उसके लिए कोई उस तरीके की स्कीम ले आएंगे, तो पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ेगा। दैट इज आल्सो द रीजन दैट इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। तो अब ये मिसिंग चिल्ड्रन के लिए आइडेंटिफाई करना कि उनकी सेंट्रल डाटा रिपोजिटरी से आप मैच करो, पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका है, वो तो ठीक है, लेकिन जब यही आप ऑर्डिनरी पर्संस को सब्जेक्ट करने के लिए यूज करो तब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कोई जर्नलिस्ट है, कोई विसल ब्लोअर है, उनके लिए अगर आप यूज कर रहे हो, दैट वुड डेटर पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। अभी फार्म बेस पे लैक्स ऑफ पीपल हैज गॉन टू दिल्ली, अगर उनकी इस तरीके से सर्विलियंस हो जाए और बाद में पता चले कि गवर्नमेंट उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट नहीं दे रही, स्वच्छ भारत अभियान के बेनिफिट नहीं दे रही, उनके घर पे एक्सेसिव बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, उनके घर पर वाटर बिल एक्सेसिव बेचे जा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जा रही है सेक्टर, दिस काइंड ऑफ रिटेलिटरी एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट द पीपल हु हैव डन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो आप सोच सकते हो कि हाउ इट कैन स्टिफल द पॉलिटिकल डिसेंट। दैट इज व्हाई दिस blanket surveillance without any regulation, without any rule, without any subject to any kind of control, this excessive power to have watch over the citizens can be problematic। तो इसीलिए हमारी फ्रीडम ऑफ असेंबली एक्सप्रेशन का ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा ये है कि इट इज नॉट 100% एक्यूरेट, कि कई बार क्या होता है कि एल्गोरिदम एक ही पर्सन के दो अलग अलग डाटा दिखा सकता है, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव।
और फॉल्स नेगेटिव हो सकता है कि दो अलग अलग पर्सन के एक ही फोटो दिखा दे, तो इसकी वजह से भी ये दिस डाटा कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन दी कोर्ट्स। तो बाकी देश क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दी अदर कंट्रीज आर डूइंग रिगार्डिंग एफआरटी। फर्स्ट, US states and cities, they have made law which has banned the police to use this facial recognition. Or Microsoft, Amazon, IBM, these companies has developed this facial recognition technology. They said they are not going to allow this technology used to those states, those countries, those public authorities which do not have any law. जिस कंट्री, स्टेट्स या पुलिस अथॉरिटीज के पास कोई रेगुलेशंस, रूल्स, सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट नहीं हो रही, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन उनको रेगुलेट नहीं कर रहा, तो दे वुड नॉट अलाउ देयर टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड बाय देम. सो दैट इज बेसिकली द स्टैंड ऑफ प्राइवेट कंपनीज. तो इसीलिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का एडवर्स यूज हो सकता है. दैट इज व्हाई वी नीड टू डिबेट ऑन दिस, वी नीड टू एस्टैब्लिश अ लॉ ऑन दिस, रेगुलेशंस ऑन इट, सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर द फेयर पर्पस. फेयर पर्पस के लिए यूज करें ठीक है, बट अनफेयर अनजस्ट पर्पस के लिए ना हो. फॉर एग्जांपल, दिल्ली में रॉयट्स हुए थे लास्ट ईयर 2020 में ऑन CNRC, तो उसमें दिल्ली पुलिस ने ये टेक्नोलॉजी यूज की थी टू आइडेंटिफाई द राइटर्स. तब तक ठीक है, if you are identifying the writers, those who have done the violence, fine, that should be done by the Modi government or Modi government controlled Delhi police. But if it is being used to subject the political opponents, then it is not fine, it is against the democracy and governance. अब आते हैं इंडियन श्रीलंका जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज. बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, लेट मी build your base. First let me tell you about bottom trailing. What is this bottom trailing? इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, इट मींस लार्ज स्केल लेवल पे फिशेस को कैच किया जाता है. फिशेस आर बीइंग कॉट बाय यूजिंग हैवी वेट नेट्स, और इसको सी फ्लोर पे ड्रैग किया जाता है. सी फ्लोर पे आप पिक्चर के थ्रू देखो, दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन. लार्ज स्केल शिप इज देयर, लार्ज स्केल नेट इज देयर. तो सी फ्लोर, दिस इज द सी फ्लोर. जैसे आपके घर का फर्श है, तो ऐसे समुद्र का भी एक फर्श है, एक बेस है, तो वहां पर इसको खींचा जाता है और जितनी फिशेस और मैरीन एनिमल्स कैच हो सकती हैं उसको किया जाता है. उसको बहुत ही हाई स्पीड पे खींचा जा सकता है. अगर मान लो यहाँ पे कोई ट्री भी है, मैरीन ट्री है कोई, तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा. दैट इज हाउ दिस बॉटम ट्रैलिंग इज बीइंग डन. तो उसके रास्ते में जो भी आता है सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, चाहे वो सी ग्रास हो, कोरल रीफ हो, रॉक गार्डन हो, कुछ भी हो, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है. बिकॉज दीज नेट्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वो स्टील के इस तरीके से बनाए जाते हैं और इतनी फास्टली ये शिप खींचती है कि कुछ भी उसके रास्ते में आएगा टूट जाएगा. सो इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द मैरीन बायोडाइवर्सिटी एंड मैरीन इन्वायरमेंट. दूसरा है, सेकंड इज पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. तो दीज आर द मेजर फिशिंग ग्राउंड्स फॉर द बोथ कंट्रीज. यू कैन सी इन दिस मैप, दिस इज द तमिलनाडु, दिस इज श्रीलंका. सो this is Gulf of Mannar and this is Palk Strait. Strait is basically a waterway which connects two ocean. यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, दोनों को वो जोड़ रही है. That is why it is known as Palk Strait. गल्फ क्या होता है, this सेमी सर्कुलर जो सी होता है उसको गल्फ बोलते हैं. Alright, and you can see this Adam Bridge also. This Adam Bridge जिसको राम सेतु भी बोलते हैं, because it is believed that it is being made by the Lord Ram by throwing stones at this point. Okay, तो IMBL क्या है? This is basically the Indo-Sri-Lanka maritime border line. It is maritime border line और ये geo tagged है. If you are using mobile geo GPS etc, you would see that this border demarcation. तो ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये इंडिया श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्री है. ये एरिया इंडिया के अंदर आता है और दिस एरिया कम्स अंडर श्रीलंका's jurisdiction. मैरीकल्चर क्या है? इट इज बेसिकली द फार्मिंग ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड. ये कहां पे होती है? सीज में होती है, इसलिए याद रखना ये मैरी वर्ड यूज किया गया है. अगर एक्वाकल्चर यूज किया तो कहीं भी हो सकती है, इनलैंड भी और ऑन आउटलैंड भी. मतलब पॉन्ड्स, जो मैरी वर्ड मैरीन मीन सीज, तो सीज में होती है ये मैरीकल्चर. इसमें मैरीन ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस, क्रैब्स,
एक्सेट्रा को कैच किया जाता है। तो यू कैन सी दिस इन एग्जाम्पल। एक्वाकल्चर क्या होती है, वो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और सीज कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना। फिशरमैन इशू क्या है कि अभी देखो कि पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार इज सो क्लोज टू दी बोथ तमिलनाडु एंड श्रीलंका, और दीज आर हॉटबेड्स ऑफ फिशरीज। तो क्या होता है कि तमिलनाडु के फिशरमैन दे गो टू दी श्रीलंकन जुरिस्डिक्शन। तो अभी आप देखो कि अब ये श्रीलंका है, ये इंडिया, देखो कि थोड़ा सा तो सी है और ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है। तो यहां से फिशेज लेते हैं तो कई बार यहाँ पे आ जाते हैं, श्रीलंका की जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं। सो देयर श्रीलंकन नेवी इज क्वाइट एक्टिव, तो उनको पकड़ लेती है, तो उनको पकड़ लेती है तो उनको जेल में डाल देती है। जेल में डाल देती है, फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करती है कि छोड़ दो, गरीब है बेचारे, फिशरीज के लिए तो आए थे, कोई ड्रग्स ट्रैफिकर या ह्यूमन ट्रैफिकर थोड़ी ना है, तो उनको वापस कर दो। तो वो प्रॉब्लमेटिक बन जाता है इंडिया श्रीलंका के रिलेशनशिप में। फिर श्रीलंका कहती है कि हमारी फिशरीज है, हमारे फिशरमैन क्या खाएंगे अगर तुम भी सारी फिशरीज ले जाओगे, वी आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन फिशरीज। तो दैट इज व्हाई दिस इशू बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया एंड श्रीलंका। तो उसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी है कि टिल 1974 टू 1976 इंडिया एंड श्रीलंकन इंडियन फिशरमैन हैज द फ्री राइट टू फिश एनीवेयर इन दिस रीजन, क्योंकि उस टाइम तक ये बाउंड्री डिसाइड नहीं हुई थी, वो कहीं भी फिशरीज कर सकते थे। बट विद 1976 देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वेयर दिस इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन हैज बीन डिमार्केटेड। तो उसमें ये बाउंड्री डिमार्केट कर दी, उसके बाद दे वर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू क्रॉस द लाइन। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब ये लाइन खींची जा रही थी, दे डू नॉट अकाउंट्स द कंसर्न्स ऑफ फिशरमैन, कि वहां पे जो तमिलनाडु के फिशरमैन है वो कैसे सर्वाइव करेंगे, वो उनके कंसर्न्स को इंक्लूड नहीं किया गया। दे नेवर इंक्लूड देयर कंसर्न्स। व्हाई? क्योंकि डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियंस वो एग्रीमेंट बना रहे थे, उन्होंने ये फैक्टर तो किया नहीं कि फिशरमैन के राइट्स क्या होंगे, क्योंकि मान लो इंडियन साइड पे फिशरीज नहीं अच्छी, थोड़ी सी यहाँ पे है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको मैप में ही समझाता हूँ। लेट मी क्लियर दिस कि पॉइंट क्या है। अब मान लो दिस इज द लाइन, ओके, दिस इज द इंटरनेशनल लाइन। अब till this area Indian fishermen can do the fisheries. Suppose this area is rich in fisheries and this area is not rich in fisheries, this area is rich in fisheries, बिल्कुल just adjacent है बाउंड्री लाइन के, बिल्कुल पास है, it is just adjacent to the boundary line. What if Indian fishers cross this line and get the fisheries here, but श्रीलंकन्स वुड इमीडिएटली अरेस्ट देम। तो अगर इस लाइन को थोड़ा सा यहां से अगर खींच देते तो इंडियन फिशरमैन के कंसर्न सॉल्व हो जाते। इफ हाइपोथेटिकली द लाइन, इंटरनेशनल लाइन इज being demarcated little bit southward, then Indian fishermen concerns may get resolved. तो इसीलिए उनके concerns रेज नहीं हुए, तो ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली आती है। यस, गुड आफ्टरनून हनु। So that is why it become problematic for India and Sri Lanka. And also there is Kachativu Island in this region. You can see this. So what is the relevance of this island? See, suppose from this area fishermen goes and they get the catch here, they get the fishes here. What they would do, they would first go to this island. तो वहां पे जाके जितनी फिशरीज है उसको नेट से बाहर निकाल लेंगे, उसको स्टोरेज में रख लेंगे, अपने आप को थोड़ा रिफ्यूल कर लेंगे, शिप को रिफ्यूल कर लेंगे, खुद भी थोड़ा खाना पीना खा लेंगे। आफ्टर ए वाइल दे वुड अगेन मूव बैक टू दी होम डेस्टिनेशन, अपने होम वापिस आ जाएंगे। सो दैट इज द रोल ऑफ द कच्चा थीवू। और उसके बाद क्या होता है कि कच्चा थीवू की प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले वहां पे वो अपने नेट्स वगैरह ड्राई कर लेते थे, but now Sri Lanka is saying that it is the part of their territory, so Indian fishermen should not come here. That is also a problematic area between India and Sri Lanka. Then yeah, good afternoon Aditya. So that is why fishermen, because they are not getting adequate fish in the Indian side, they are crossing the Sri Lankan side. That is why sometimes they get empty-handed. But if they cross the line, Sri Lankan Navy would arrest them, destroy their nets, etc. So to resolve this, joint working group has been established in 2016
Ministry of Agriculture and Ministry of Fisheries of Sri Lanka are the partners, members, and members from Foreign Affairs, Coast Guard, Navies are also taken. So, what was the objective of this group? To find a permanent solution to this issue, then ending the practice of bottom trawling, because fishermen in this region is doing this practice, it is causing harm to the environment. Then fishermen who are being arrested should be returned, because they are not the criminals, they are not the illegal immigrants, they should be returned. Then joint patrolling should be there in case suppose Sri Lankan fishermen cross the line or Indian fishermen cross the line. On the spot, both navies could take the action and ask those fishermen to return to their home. So this is the current affair news. Joint working group fourth meeting has been held through online mode. What is this fourth meeting? They exchanged their views regarding cooperation between Navy and Coast Guard regarding patrolling. See this. This is how patrolling is done. जैसे आपके एरिया में रात को देखा होगा, पुलिस क्या लगाती है? गश्त लगाती है. गश्त लगाने का मतलब क्या होता है कि the police jeeps would roam around in the streets and roads of your town. तो उसमें क्या होगा कि in case they found any suspicious activity, they can prevent it, or if they can any emergency call, they can respond it. ठीक है, तो इसी तरीके से सीज में इंडियन नेवी पेट्रोल करती है. इन केस दे फाउंड एनी टेररिस्ट कमिंग, लाइक मुंबई 2611 टेररिस्ट हैज कम फ्रॉम सी रूट, कोई पायरेट्स, कोई स्मगलर्स, इफ दे फाउंड they can immediately catch them. And in case any illegal immigrant is finding a way, or any this fisherman of other countries catching in the Indian waters, they can catch them. तो पेट्रोलिंग पे उन्होंने व्यूज एक्सचेंज किए, हाउ टू डू दिस. देन हॉटलाइन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द कोस्ट गार्ड. देखो सपोज दिस इज द लैंड एंड दिस इज द सी. सो कोस्ट गार्ड प्रोटेक्ट्स this area, that is seas near the coast. Navy protect the deep sea. Navy protect the deep sea. In the far distant sea, in the far distant seas, Navy protect it. Okay, so that is why both role is quite crucial in this matter. तो कोस्ट गार्ड के बीच में हॉटलाइन एस्टेब्लिश की. हॉटलाइन क्या होता है कि जैसे मान लो श्रीलंकन नेवी या कोस्ट गार्ड ने इंडियन फिशरमैन को कैच किया, दे वुड इमीडिएटली कंटेक्ट विद द इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी एंड दे वुड एक्सचेंज देयर व्यूज कि अब फिशरमैन का क्या करना है, दे शुड बी रिटर्न और नॉट, वेदर ही इज द हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअली ऑफेंडिंग द crossing of line, or whether he should be returned or how he should be returned, etc. That could be done. That is why this hotline has been established. Hotline क्या होता है कि बेसिकली कॉल होती है, बेसिकली कॉल में भी थ्रू मोबाइल में भी लैंडलाइन एक्सेट्रा. तो उसमें क्या होता है कि 24/7 अवेलेबिलिटी होती है कि वो पर्सन आपकी एक कॉल पर उठाएगा ही उठाएगा. जैसी एक कॉल आएगी आपको उठाएगा उठाएगा. ऐसा नहीं है कि कॉल कर रहे हैं उठाएगा, शाम को बात करेंगे, सुबह बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. 24/7 दिस हॉटलाइन इज अवेलेबल. Then they have exchanged preservation of marine environment and also discuss about the fifth meeting. And Sri Lanka want to enter Arabian Sea. So this is the map. This is here Sri Lanka. This is the Arabian Sea. So Sri Lanka wants to catch fishes here because it is also not getting the fishes in its water. तो यहाँ पे Arabian Sea में जाता है, तो it wants India permission to do fishing here. तो इंडिया क्या बोल रहा है? इंडिया सेज कि पहले तो हमारे फिशिंग बोट्स जितनी भी आपकी कस्टडी में रिलीज करो, फिशरमैन को रिलीज करो. देन इंडिया आल्सो हाईलाइटेड दैट, देखो जो फिशरमैन का इशू था वो क्या है, लाइवलीहुड का इशू है, लाइवलीहुड का. दीज फिशरमैन, दे इंडियन फिशरमैन हैज टू सर्वाइव, उनको अपना घर चलाना है, उनको अपना घर चलाना है. इसीलिए उनको कोई शौक तो है नहीं कि श्रीलंका के वाटर्स में जा रहे हैं, है ना, तो कि वहां पे जाके श्रीलंका पुलिस के साथ चोर पुलिस खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो अपनी लाइवलीहुड के लिए शाम को उनको अपने बच्चों को पेट भरना है, इसलिए जा रहे हैं. सो दैट इज व्हाई इंडिया सेज कि मुद्दा लाइवलीहुड का है, तो हमें फिशरमैन को एडिक्वेट पर मंथ इनकम इंश्योर करनी है. वी हैव टू इंश्योर पर मंथ इनकम ऑफ द फिशरमैन. तो अगर मुद्दा इनकम का है, सो व्हाई नॉट वी मेक दिस फिशरमैन टू डू इनलैंड फिशनरीज, कि यहीं अपने गांवों में, लेक्स में, पॉन्ड्स में तुम इनलैंड फिशरीज करो, वहां से आप इनकम जनरेट करो. सेकंड, इफ डू नॉट गो टू दिस श्रीलंकन वाटर, इंस्टेड गो फॉर द डीप सी फिशिंग, कि आगे निकल जाओ, जो इंडिया के वाटर्स में से आगे निकल जाओ. सपोज लेट मी शो इन द मैप.
हाँ, यहाँ पे मत करो, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। जरूरी है यहाँ पे खेलना है। जैसे आप अपने बचपन में होता होगा, पड़ोस वाली आंटी अगर कोई आप क्रिकेट खेलते थे, बॉल नहीं देती थी, तो जरूरी है वही खेलना है, कहीं और खेल लो। जब एक इंसान इतना ज्यादा इंटॉलरेंट, इतना ज्यादा वो हो रहा है, तो यही इंडिया की अप्रोच है। दैट इज वाई इट हैज लॉन्च मत्स्य संपदा योजना। इसमें गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ह्यूज मनी, 20,000 crore फॉर developing marine inland and aquaculture, fishing, cold chain, marketing, etc. So that is why they are being shifted from one to other sources. तो इसीलिए हमें पार्क बे में फिशरीज ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। देन आल्सो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग डीप सी फिशिंग। यू कैन सी इन दिस पिक्चर व्हाट इज डीप सी फिशिंग, कि आप कोस्ट लाइन पे फिशिंग नहीं कर रहे हो, डीप सी में जा रहे हो, बहुत अंदर तक जा रहे हो, वहां पे जाके फिशरीज पकड़ के ला रहे हो। और यू कैन सी दिस हाउ इन डीप सी फिशिंग वर्क्स। तो वो भी प्रमोट कर रहे हैं। तो इसीलिए दिस बॉटम ट्रायलिंग को रिमूव करने के लिए और पार्क बे पे डिपेंडेंस कम करने के लिए वी आर प्रमोटिंग डीप सी फिशिंग। ओके, तो इट इज बीइंग डन अंडर द ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम, ये याद रखना, ठीक है। एंड आल्सो वी आर प्रमोटिंग अल्टरनेटिव लाइवलीहुड थ्रू सीवीड कल्टीवेशन, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। मैरीकल्चर तो मैंने आपको दिखाई दिया था, दिस इज हाउ एक्वाकल्चर इज डन। यू कैन सी दिस ऑन लैंड स्मॉल पॉन्ड्स आर फॉर्म, इसके अंदर फिशरीज उगाई जाती है। That is how we are able to ensure alternative livelihood for the fishermen, कि तुम यहाँ से पैसा मत करो, यहाँ से कमा लो, तुम्हें तो पैसे से मतलब है ना, पर मंथ इनकम होनी चाहिए, तुम यहाँ से कमा लो, जरूरी है श्रीलंका के साथ हमने पंगे लेने हैं। So we need to establish traditional cultural ties to Sri Lanka and we need to respect each other concerns. Then only we would able to develop healthy relationship with each other. This is the main answer writing question for you. India Sri Lanka is sharing a close yet distinctive relationship, critically examined. हम कहते हैं कि इंडिया श्रीलंका पास है, ज्योग्राफिकली पास है, कल्चरली पास है, लेकिन फिर भी दूर दूर है। मतलब कुछ इश्यूज हैं जो हमें इंडिया और श्रीलंका को पास आने में रोक रही है, क्लोज बॉन्डिंग बनाने में रोक रही है, क्लोज रिलेशनशिप बनाने में रोक रही है। तो उसी के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड 350 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बिटवीन खुर्जा एंड भोजपुर। तो ये इश्यू आपको बाद में समझाएगा, पहले आप डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बारे में समझो। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक्स। So what is this dedicated freight corridor corporation of India limited? It is basically a company, public sector company. It is a PSU. It comes under Ministry of Railway. Special purpose vehicle means an organization. It may be a company, it may be a society, it may be a trust, etc. Special purpose means for particular purpose, for single purpose, for exclusive purpose it has been established. So its exclusive purpose is single purpose is to construct this freight corridor. So 3,300 kilometer long freight corridor it is going to build up. So DMR, Delhi Metro Railway Corporation, this is also a special purpose vehicle. Its exclusive objective is to build the metros in the Delhi NCR region. So that is what special purpose vehicle means. So it is headquartered in Delhi. So all the works related to DFC it would done. So you can see the picture of this office of DFC so that you can visualize it, you can imagine it for better understanding. Dedicated freight corridor, अब ये क्या है? It is basically high speed, high capacity railway corridor. What does it mean? मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूँ। This is the dedicated freight corridor. कि this railway line is exclusively reserved for the मालगाड़ी, for the goods train. जो मालगाड़ी होती है उसके लिए एक्सक्लूसिव रख ली है कि इस ट्रैक पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलेगी। दिस इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर दिस गुड्स ट्रेन। और दिस ट्रैक इज न्यूली बिल्ट, दिस इज न्यूली बिल्ट। This is basically known as dedicated freight corridor. Freight means transportation of goods and services. Freight in economics means transportation of goods and services. Dedicated means specialized or exclusively meant for freight. Corridor is basically this railway track.
and through the use of state of art technology, this railway line is being laid out. This high tech technology, German technology, is being used to construct this railway line. It has two components. It has two components. You can see this: eastern and western. Eastern and western. Yes, I would talk about freight charges, no doubt, Ritik. This is western corridor. This is eastern corridor. You can see this. This is eastern. This is western. This उसके दो हाथ हैं. It has two arms. आप देख सकते हो दो बाजू हैं. So let us start with eastern dedicated. It started with Sainiwal, Ludhiana in Punjab. Ludhiana is also an industrial city of Punjab where cycles are manufactured, where hosiery products, that is clothes products, are manufactured, and it would end in the Dunkani in West Bengal. You can see this. It is quite near to Kolkata Haldia port. So basically, अब देखो अंबाला, सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा, टुंडला, कानपुर, मुगलसराय, इलाहाबाद, गोमू. See these cities. These cities are industrial cities of our country. अगर लुधियाना में कुछ मैन्युफैक्चर हुआ, उसको क्या करना है? इस रेलवे ट्रैक में डालेगा without without any stop. This railway is going to travel non-stop and it would immediately reach to Dunkani. कोई सिग्नल नहीं, कोई स्टॉपेज नहीं, कुछ नहीं, सीधी पहुंचेगी यहां पर और यहां से फिर एक्सपोर्ट होगा. दैट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर. तो इसमें देखो मल्टीपल स्टेट्स आर कवर्ड: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. झारखंड क्या है? माइनिंग एरिया है. माइनिंग एरिया है. अगर पंजाब हरियाणा में कोई माइन की वो है, वेस्ट बंगाल में कोई माइनिंग इंडस्ट्री है, तो इस रेलवे के थ्रू कोल, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा could easily be transported. Could easily be transported. So you can see this in greater detail. Greater detail. This is how it is going to travel. देखो, large number of industrial towns are being located at this railway route. तो जो इंडस्ट्रियल टाउन है वहीं के रेलवे स्टेशन से होकर ये गुजरेगी. It will travel from these industrial town railway stations. So thermal power plants, उनको मान लो कोल चाहिए, easily can be supplied to these power plants. इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन सप्लाई हो सकती है, उनके फिनिश गुड्स इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. तो फीडर रूट्स आर आल्सो मेड. फीडर रूट्स क्या होता है? सपोज दिस इज भोपाल, so Bhopal to Kanpur route would also be developed. So suppose this is Jaipur, Jaipur to Allahabad route would also be developed. जो जयपुर में कोई इंडस्ट्री है, भोपाल में कोई इंडस्ट्री है, उस वो भी इससे लिंक हो जाएगा. So this is what feeder routes means. So this is 1800 kilometer long and it is largest rail infrastructure since independent. जो रेलवे अंग्रेज बना के तो बना के थे, उसके बाद ढंग से हम रेलवे भी नहीं बिल्ड कर पाए. तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर ब्रिटिशर्स वी आर अंडरटेकिंग. और 2006 से चल रहा है. आप सोच सकते हो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है. सारी की जो एक नई न्यू रेलवे लेन हैज बीन लेड आउट इन दिस स्कीम. एब्सोल्युटली न्यू. और ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक इज फंडिंग ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर. वर्ल्ड बैंक is funding Eastern Dedicated Freight Corridor. तो अब मोदी जी ने ये 350 किलोमीटर, जो ये 1800 किलोमीटर में से 350 किलोमीटर बन के तैयार हो गया है, वो उन्होंने कानपुर दिल्ली के बीच में से इनॉग्रेट किया है. आप देख सकते हो ये न्यू खुर्जा से लेकर न्यू भावपुर तक इतना एरिया उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया. बाकी अभी बन रहा है. रेस्ट इज स्टिल बीइंग कंस्ट्रक्टिंग. ठीक है. अब आते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पे. कमिंग टू दिस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर. So it is 1500 किलोमीटर. ईस्टर्न कितना था? 1800 किलोमीटर. सो ईस्टर्न
कॉरिडोर इज लेंथियर। इट वुड स्टार्ट फ्रॉम, देखो वो कौन से पोर्ट तक जा रहा था, कोलकाता पोर्ट तक जा रहा था, ये कौन से तक जाएगा, मुंबई पोर्ट से स्टार्ट हो रहा है, और ये दादरी इन उत्तर प्रदेश तक लिंक होगा, यानी एनसीआर रीजन ऑफ दिल्ली। एनसीआर रीजन में कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं, कभी आप विजिट करके देखना, सो मेनी फैक्ट्रीज आर देयर इन दिस एनसीआर रीजन। कोई इलेक्ट्रिक वायर बना रही है फैक्ट्री, कोई टेक्सटाइल्स बना रही है, कोई शूज बना रही है, कोई लेदर प्रोडक्ट्स बना रही है, सो मेनी फैक्ट्रीज आर देयर, सो ऑल वुड गेट लिंक्ड। कोई एनसीआर में कोई भी प्रोडक्शन होएगा इजिली कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई, और वहां से मिडल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सब जगह एक्सपोर्ट हो। तो यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट होगा। यू कैन सी दिस इन मैप इन ग्रेटर डिटेल, आप देख सकते हो। तो यहां से जेएनपीटी, देखो सारे इंडस्ट्रियल टाउन यहाँ पे लिंक हो रहे हैं, सनद ऑफ गुजरात एक्सेट्रा, सूरत एक्सेट्रा, सब लिंक होंगे इसमें। इसमें राजस्थान के सारे, अजमेर एक्सेट्रा, सब लिंक होते जा रहे हैं। और इसको फंड किया है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इट इज बीइंग फंडेड बाय जापान। ईस्टर्न को किसने किया था, वर्ल्ड बैंक, याद रखना। एंड दिस कवर दिस नंबर ऑफ स्टेट्स। तो दोनों को जोड़ती भी है, इन दोनों बाजुओं को एक जगह जुड़ती है, वो है दादरी एंड खुर्जा। दिस टू आर बीइंग लिंक्ड हियर, यू कैन सी इट, दादरी एंड खुर्जा हियर बोथ गेट लिंक्ड। ऑलराइट, सो वडोदरा, ऑल इंडस्ट्रियल टाउन आर देयर। तो एक दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज आल्सो स्टैब्लिश हियर। अब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, देखो आप यहाँ पे समझने की चीज है। अब रेलवे यहाँ पे आपने डेवलप कर दी, यानी आपने वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ द बॉडी हैज बीन लेड आउट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वेन्स एंड आर्टरीज है, रेलवे, रोड, एयरपोर्ट्स, ये वेन्स एंड आर्टरीज है। ठीक है, आपने ये कर दी। अब आप जरूरत है आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन की। ऑर्गन क्या है, इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रीज, जिसको हम सिंपली मीनिंग में बोल सकते हैं फैक्ट्रीज। तो यहां पर देखो मुंबई एरा, दिल्ली एरा, इस रूट पे, इस जितने भी रूट है यहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की जाएंगी। यहां पर इंडस्ट्री बनाई जाएगी, यहां पर बनाई जाएगी, यहां पर बनाई जाएगी, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो कुछ भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए या फिनिश गुड सप्लाईज करने, वो इजिली कर सकते हैं। इसी तरीके से अमृतसर, या देखो यहाँ पे अमृतसर है और यहाँ पे कोलकाता है, इस रूट पर बिल्कुल इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की जाएंगी। तो यानी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो इंडस्ट्रीज ऑर्गन्स हैं, वेन्स एंड आर्टरीज क्या है, ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। और पहले ही हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटर तो बनाया ही हुआ है रोड्स का, वो रोड्स का है, वो तो पहले ही बनाया हुआ है। तो अब ये रेलवे उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉरिडोर, इट वुड इंक्रीज कैपेसिटी ऑन ट्रंक रूट्स। पहले तो ये ट्रंक रूट्स क्या होते हैं, ट्रंक रूट्स आर दोज रूट्स विच विटनेस हैवी ट्रैफिक। तो उन रूट्स पर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी का मतलब क्या है, सपोज अर्लियर 16 tons in 1 hour could be transported, now it would be able to transport 25 tons per hour. That is basically the capacities, more number of goods could be transported, because क्या है ना कि पहले मान लो ये एक वो है रेलवे ट्रैक है, तो यहां पर गुड्स की ट्रेन भी चल रही है, इसी ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन चल रही है। तो मान लो अब यहां से गुड्स की ट्रेन चल पड़ी और यहां पे जाके उसका स्टॉप लगा दिया, अभी शताब्दी आ रही है, उसको जाने दो, पहले शताब्दी जाएगी फिर तुम जाना। तो अब उसके पहले ले रही थी वो 16, मान लो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चल पाई, अब 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चल जाएगी, बिकॉज ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। उसको कुछ रुकने की जरूरत नहीं है, उस कॉरिडोर पे अपने मस्त होकर चलेगी, उसका एक्सक्लूसिव अड्डा है वो। ठीक है, फिर अब फ्राइट ट्रेन्स का हमने अलग से ट्रैक बना दी, सो पैसेंजर ट्रेन्स वुड गेट दिस रिमेनिंग ट्रैक्स। तो वहां पर पैसेंजर ट्रेन्स इजिली ट्रैक कर सकती हैं, तो इसलिए ट्रैक्स पर कोई कंजेशन नहीं होगा कि भाई एक ट्रैक पर, मतलब क्या है कि एक ही ट्रैक पर 4 ट्रेनें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दैट वुड लेड टू डी कंजेशन।
बिजनेस भी जनरेट होगा, बिकॉज अभी जो नितिन ने क्वेश्चन पूछा है दैट इज गोइंग टू आंसर हेयर. सो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन DMRC, what it do, it charges from the consumer and it keeps some profit with itself and some it gives to the ministry. Similarly, this dedicated freight corridor corporation, it would charge from the users of this रेलवे लाइन कि अडानी, अंबानी, टाटा एटसेट्रा अगर इस जिंदल एटसेट्रा अगर इस रेलवे ट्रैक को यूज करेंगे, उनकी ट्रेन इस पे चलेगी, तो वो उस पर चार्ज करेगी. कुछ चार्ज अपने पास रख लेगी और कुछ पैसा रेलवे को दे देगी. देन मोर नंबर ऑफ रेलवे लाइंस, इट मींस मोर नंबर ऑफ ट्रेन्स. तो मोर नंबर ऑफ ट्रेन्स, इजी ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी inconvenience, so there would be punctuality in the trains and with greater benefits to the consumer. Cost would also be reduced, faster movement of goods, energy efficiency would be there कि start करो stop करो फिर से start करो stop करो, कितना पेट्रोल फूक जाता है वो नहीं होगा, डीजल फूक जाता है वो नहीं होगा. Environmental friendly it is there, ease of doing business would be there. आप श्योर हो कि 8 आवर्स में मेरा माल पहुंच जाएगा. पहले आप श्योर ही नहीं होते थे कि 2 डेज लगेंगे, 3 डेज लगेंगे, कितने लगेंगे. यू आर नॉट श्योर वेदर योर गुड्स और कुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लुधियाना टू कोलकाता इन ड्यू टाइम और नॉट. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, रेलवे ट्रैक में इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इंप्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो इसके चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस? यस, आप क्या इमेजिन कर सकते हो इसके चैलेंजेस? What are the challenges in dedicated freight road? आप कमेंट बॉक्स में बताओ, उसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगा. आई वुड ऐड ऑन द चैलेंजेस, यू वुड राइट इन लाइव चैट. ठीक है, आप बताओ. चलो पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर कर दो, उसके बाद चैलेंजेस लिख देना. आफ्टर द राइटिंग, आफ्टर आंसरिंग दिस प्रीलिम्स क्वेश्चन, देन राइट द चैलेंजेस. Or even one more significance is there. It would also paves the way for private sector to operate passenger trains on the railway tracks. There would be decongestion on the railway tracks. The railway tracks would be available for the good passenger trains. अब फ्राइट गुड्स का अलग से ट्रैक हो गया, पैसेंजर ट्रेन्स का अलग से ट्रैक हो गया. सो यानी इस ट्रैक पर मोर नंबर ऑफ ट्रेन्स कुड बी ऑपरेटेड, देन मोर नंबर ऑफ ट्रेन्स could be operated, so these surplus trains could be offered to private sector like Tata etc to run their trains on it. Just like business model of DFC corporation, similar बिजनेस मॉडल वुड बी डेवलप फॉर दिस पैसेंजर ट्रेन आल्सो, कि आप रेलवे की ट्रैक को यूज कर रहे हो, उसके सिग्नलिंग सिस्टम को यूज कर रहे हो, उसके सेफ्टी सिस्टम को यूज कर रहे हो, तो आपको रेलवे को टोल फीस देनी पड़ेगी. जस्ट लाइक वी पे टोल फीस फॉर द रोड्स फॉर यूजिंग द रोड, सिमिलरली टोल फीस वुड बी पेड बाय दिस प्राइवेट सेक्टर ट्रेन्स टू द रेलवे. तो यहां पर मोर एंड मोर नंबर ऑफ ट्रेन्स चल सकती है. जैसे रोड पर both public transport is there, public buses also there, like Haryana State Corporation Transport Corporation runs, Punjab State Transport Corporation trains चलती हैं वैसी, और प्राइवेट सेक्टर की भी चलती है, मर्सिडीज बसेस चलती हैं, कोऑपरेटिव्स की बसेस चलती हैं. इन द सिमिलर फैशन बोथ trains run by the government and trains runs by the private companies could run on the tracks. तो ये एक मॉडल यहां पर डेवलप हो सकता है थ्रू दिस डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉन्सेप्ट. यस, यू आर आंसरिंग D. Let us see. या आंसर इज अरे आपका ध्यान किधर है? अरे आपका आंसर आपके सामने है. इट इज नॉट रोड कॉरिडोर, इट इज रेलवे कॉरिडोर. World Bank is not funding both. It is only funding one dedicated corridor, that is Eastern. So answer is D. Answer is D. So now coming to the sexual violence in rural India. In the rural India, not in the urban India's. Nirbhaya case. Nirbhaya case was happened in 2012 in urban area, that is
Delhi, but we are discussing rapes etc. in rural India. Me Too movement also mostly happened in urban areas, but we are going to discuss in rural areas in this topic. So first quite prominent case was Bhavri Devi rape case in 1992. So you can see this picture. So what happens, there was a lady named Bhavri Devi. She was an agriculture laborer and she was brutally gang raped by the upper caste landlords. And first police was refusing to register FIR, then lower court has freed the accused. They have not charged the accused, they have not held them guilty. Then she has went to high court. High court do admit that they are guilty, but because of frequent transfer of judges etc., the accused get only 9 months jail. Then the protests start happening, agitation start happening. Then women activists also come in. So you can see this in picture, how people come on the roads in 1990s to protest against the non against the denial of justice to the Bhabri Devi. You can see this in this picture. Is the तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया एंड इन 1997 लैंडमार्क जजमेंट कम्स इन. तो ये लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारे एग्जाम के लिए. तभी मैंने आपको ये भवरी देवी केस की स्टोरी सुनाई है. दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ भवरी देवी. द लैंडमार्क जजमेंट केम ऑफ विशाखा जजमेंट. Vishakha judgment comes in where Supreme Court give us Vishakha guidelines for preventing sexual harassment at workplace. क्योंकि वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही, तो वो भी एक वर्क प्लेस ही था. दैट वॉज ऑल्सो द वर्क प्लेस. ठीक है. सो this is the first case. Second is the recent one of Hathras case 2020, which has also happened in rural areas where police was involved in the rape, murder, or was in complicit with the accused. Hathras case, that was also the victim was from lower caste, that is a Dalit, and the accuser was the upper caste. निर्भया केस में भी मुझे निर्भया नहीं पता कि वो अपर कास्ट से थी या लोअर कास्ट से थी, बट the accused have from Kshatriya class also, Vaishya class also, and दिस ब्राह्मण कास्ट आल्सो. तो 3-4 जो क्यूज थे, किसी की कास्ट गुप्ता थी, किसी की क्षत्रिय कास्ट थी एक्सेट्रा. ठीक है. तो अब इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंगल, एक एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं. जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. दिस टॉपिक इज नॉट मेंट टू ऑफेंड एनी पर्सन बिलोंगिंग टू लैंडलॉर्ड और लॉर्ड क्लास, अपर कास्ट एक्सेट्रा. दिस इज ओनली एकेडमिक discussion, so have a thick skin while discussing these kind of issues. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ये सेक्सुअल वायलेंस है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ लस्ट, इट इज नॉट डन फॉर द लस्ट और सेटिस्फाइंग द लस्ट ऑफ अ पर्सन. its reasons are patriarchy, the caste discrimination and exercise of power or dominance over the women. वो रीजंस इसमें बताए गए हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इन्हीं रीजंस को अगर आप आंसर में लिखोगे देन यू वुड गेट द मार्क्स. अगर आप लिखोगे कि समाज में लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं, तो हवस को मिटाने के लिए वो ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. पोर्न देखते हैं तो पोर्न में जाके उत्साहित हो जाते हैं तो कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर द अदर रीजंस इन्वॉल्व्ड इन डूइंग सच काइंड ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन. वही हम इसमें पढ़ रहे हैं. एंशिएंट सोशल स्ट्रक्चर. तो देखो, एंशिएंटली आवर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ब्राह्मणा एट द टॉप, क्षत्रियस एट द मिडल, देन वैश्या, देन द लोअर कास्ट. तो एंशिएंट टाइम से बहुत कुछ बदला. वी हैव डेवलप्ड रोड्स, बिल्डिंग्स, we have developed ports, airways, telecom services etc. we have moved a lot, but एक चीज नहीं बदली, वो है caste system. You can see this to picturize the thing in your mind. Amrish Puri, the symbol of upper caste landlord, backed by a Vaishya, that is a money lender etc. Okay. And what happens,
ये सिर्फ इट इज नॉट अबाउट द आइडेंटिटी और द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन की ब्राह्मणास आर प्योर एंड लोअर कास्ट शूद्रास आर अनप्योर एक्सेट्रा, वो कॉन्सेप्ट उसका अंडरलाइंग बेस नहीं है। वो है अंडरलाइंग जो एस बेस है, अंडरलाइंग बेस है वो है पावर का और रिसोर्सेस का। दिस अपर कास्ट हैज appropriated the power in the society. Economic power is appropriated by Vaishyas. The political power is appropriated by Kshatriyas. The social cultural power is appropriated by the Brahmanas. And Shudras are left with no power at all. Similarly, resources, the state resources is appropriated by Kshatriyas. The economic resources is appropriated by Vaishyas. एंड नॉलेज रिसोर्स इज अप्रोप्रिएटेड बाय ब्राह्मणर्स। तो इसमें आप देखोगे कि लैंड किसके पास है, अपर कास्ट के पास। जॉब्स किसके पास है, अपर कास्ट के पास। गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में है, अपर कास्ट के। तो इसीलिए आप देखोगे दीज लोअर कास्ट पीपल आर एब्सोल्युटली पावरलेस। और ये तो होगी कास्ट की बात। अब पेट्रियार्की भी है सेकंड। Man has also the greater power and greater resources than women. He has snatched away the resources from the women. उसके पास ना तो कोई पावर है ना कोई रिसोर्सेज है। तो आप ये सोच के देखो, वुमेन एट लोअर कास्ट, जो वुमेन ऑफ लोअर कास्ट, वो तो वर्स्ट सिचुएशन में है। उसके पास कास्ट की वजह से भी पावर रिसोर्सेज नहीं है, एंड बीइंग अ वुमेन आल्सो शी डज नॉट हैव एनी रिसोर्सेज एंड पावर। तो क्या होता है, these upper caste people, some I'm not painting the all members of upper caste as black, मैं सभी के मुंह पर कालिख नहीं फेंक रहा कि सारे के सारे अपर कास्ट बुरे हैं एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी सम मेंबर्स हु डू सच काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन एक्सेट्रा। ओके, सो बिल्कुल भी पर्सनल मत होना इस चीज में। जैसे मोदी जी कहते हैं ना एक बात, कि कहते हैं कि सब नेता चोर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चोर की टोपी मैंने भी पहन रखी है। कहने का मतलब ये है कि उस चीज को मैं पर्सनली लूं। मोदी जी कहते हैं कि इस चीज को मैं पर्सनली नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है कि मैं ईमानदार हूं। ठीक, तो दैट इज शुड बी अप्रोच ऑफ अर्स आल्सो व्हाइल डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज। तो अपर कास्ट मेल इन ऑर्डर टू प्रमोट the status quo, that is to keep control over the resources and power, sometimes use sexual violence as an instrument to keep or to maintain that power and resources। अगर वो चैलेंज किया जा रहा है, अगर कोई वुमेन लोअर कास्ट की अपर कास्ट के खिलाफ आवाज उठाती है, अपने राइट्स के बारे में मांगती है कि मुझे सैलरी पेमेंट पे, वेजेस पेमेंट टाइम पे दो, या मुझे रिस्पेक्ट दो, डिग्निटी दो एक्सेट्रा, देन शी वुड बी सब्जेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ वायलेंस इन ऑर्डर टू असर्ट dominance over her. That is basically the point here. Second is land reforms. In rural economy, in rural polity also, in rural polity and economy and society, land is supreme. जिसके पास लैंड है, जिसके बाद आप एग्जांपल लो बिहार के भूमिहर हो, या पंजाब के सरदार हो, या अपने हरियाणा के जाट हो, कोई भी हो, जिसके पास लैंड है वही राजा है। लैंड इज द क्लास, लैंड इज द पावर। पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स गन रखेंगे अपनी जेब में। आप कितने भी पंजाबी गाने देखो, ऑल आर ग्लोरीफाइंग द लैंडलॉर्ड्स, ऑल आर ग्लोरीफाइंग द लैंडलॉर्ड्स। और वो ऑनर भी है, आप देखोगे जिसके पास लैंड है उसके पास सरदारी है। So again, it is an instrument for getting economic, social and political power. अभी आप देखोगे most of the MLAs, they are the landlords. एक किला बेचते हैं 50 लाख का, इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, फिर उसी से 100 किले नए बनाते हैं। So this circle goes on. The maximum number of MLAs and MPs in our polity are landlords. Example is Prakash Singh Badal, Bhupender Singh Hooda, Om Prakash Chautala, Lalu Prasad Yadav. Some all are landlords, and this landlordism, this land is belongs to the upper caste. तो वो अपनी लैंड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
सो लैंड इज आल्सो बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। और जब टू कास्ट ग्रुप्स में झगड़ा होता है ओवर द लैंड, देखो लैंड के चक्कर पे कई बार गोलियां चल जाती है, गांवों में मौतें हो जाती है ऑन दी लैंड, बिकॉज लैंड इज द बेसिस ऑफ योर इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। और उस डिस्प्यूट में वुमेन इज द कोलेक्टरल डैमेज। उसका प्राइम एग्जांपल है महाभारत। महाभारत भी क्या था, एक लैंड डिस्प्यूट था बिटवीन कौरवास एंड पांड्यास। पांड्यास कह रहे थे कि दिस इंद्रप्रस्थ इज माइन एंड लैंड ऑफ द इंद्रप्रस्थ इज माइन, कौरवा सिंह द लैंड ऑफ द इंद्रप्रस्थ इज माइन। तो उसमें भुगतना किसको पड़ा, द्रौपदी को, फालतू में भाइयों की लड़ाई लैंड पर, और भुगतना पड़ा द्रौपदी को। सिमिलरली द वुमेन ऑफ द लोअर कास्ट समटाइम्स सफर ओवर द लैंड डिस्प्यूट। देन लोअर कास्ट का राइज, पॉलिटिकल राइज बिकॉज ऑफ बहुजन समाज पार्टी और भीम्स आर्मी एक्सेट्रा। दे ट्राई टू असर्ट देयर राइवल्स दैट वी आर इक्वल, वी आर आल्सो शुड बी गिवन इक्विटी और सोशल जस्टिस एक्सेट्रा, शुड बी ट्रांसफर्ड सम लैंड एक्सेट्रा। तो वो फिर अपर कास्ट को पसंद नहीं आती कि रिजर्वेशन भी दे दिया, लैंड ट्रांसफर की जा रही है, स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट्स दिए जा रहे हैं, घर दिया जा रहा है, मुद्रा योजना में पैसे दिए जा रहे हैं। तो समटाइम्स इन दिस फ्रस्ट्रेशन, in this insecurity over rise of the Dalits, they sometimes do the act of sexual violence. Then police sometimes may be from dominant caste group, तो वो insensitive हो जाती है। आपने आर्टिकल 15 देखे होगा, हाउ they were in upper caste constabulary was insensitive to the concern of the lower caste victim. And sometimes they also get pressure from the upper caste MLAs and MPs not to register the FIR, not to do the investigation properly, etc. Otherwise, they would face transfers and dismissals. And sometimes क्या होता है कि वुमेन, आपको पता है घर का गहना है, घर का गहना है, घर की इज्जत है, उस वुमेन को ही मान लिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि लोअर कास्ट को सबक सिखाने के लिए या उस जात को सबक दिखाने के लिए वुमेन का रेप कर दिया जाता है, उस जात को सबक सिखाने के लिए, इसीलिए भी ये होता है। और कई बार क्या होता है, वुमेन को एज ए टूल भी यूज किया जाता है कि फेक केसेस फाइल कर दिए जाते हैं कि मेरा रेप कर दिया एक्सेट्रा, कि वो भी होता है जस्ट टू गेट द रिवेंज अगेंस्ट द पर्सन ऑफ अदर कम्युनिटी। तो ये कास्ट और पेट्रियार्की का जो मिक्सचर है एंड आल्सो क्लास का, लैंड की वजह से ये एक डेडली मिक्सचर बनता है लोअर कास्ट वुमेन के लिए। वो पावर स्ट्रक्चर में बिल्कुल लोवेस्ट पे आती है और शी बिकम्स द विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ केसेस। तो उसके लिए हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। फर्स्ट इज पुलिस रिफॉर्म। देखो मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखते हैं, यू कैन सी दिस। पुलिस रिफॉर्म चाहिए टू मेक देम इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस, सो टू डू फेयर इन्वेस्टिगेशन। ये रिफॉर्म्स हैं, ये आपको लिखने हैं। ये अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इट वुड बी डिस्कस्ड व्हेनेवर वी पिक पुलिस टॉपिक इन आवर करंट अफेयर डिस्कशन, देन वी वुड डिस्कस इट। बट जस्ट फॉर द रेफरेंस फॉर द रिफॉर्म इन दिस सिचुएशन इट हैज बीन मेंशन्ड हियर। देन वुमेन एम्पावरमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उसको इंप्लीमेंट अच्छा होना चाहिए। दैट इज व्हाई यू एज एन आईएएस एस्पिरेंट हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी इफेक्टिवली, चाहे उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, मुद्रा योजना और सेक्टर। लैंड रिफॉर्म शुड बी देयर। फॉर दैट डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटलाइजेशन इज अटमोस्ट नेसेसरी। व्हाई, कि अगर मान लो रिकॉर्ड प्रॉपर हो गया कि ये लैंड मान लो सुरेश कुमार की है, ये लैंड राधेश्याम की है, ये लैंड रमेश की है, देन इट वुड बी क्लियर दैट हुज लैंड बिलोंग्स टू हुम, विच लैंड बिलोंग्स टू हुम। इसका मतलब क्या होगा कि क्या होता है कि देखो लैंड क्या है, पावर ऑफ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। तो वो अपर कास्ट या लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, दे स्नैच अवे द लिटिल लैंड द लोअर कास्ट में पोसेसिंग। तो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो गया सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्नैच अवे द लैंड ऑफ द लोअर कास्ट। दैट इज व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और जो बंजर जमीन है दैट इज आल्सो शुड बी abadi land and banjar zameen. Abadi land, abadi means population, so those land in the rural areas which are used for residential purpose, that is basically the abadi land, residential purpose. Banjar zameen is the leftover land where nothing grows. So here again, to get more land, to get more power, they encroach upon this land. But this land is mostly used by the lower caste. How they would take their goats, cows, buffalo, etc. to this land and let them graze
these small vegetation like grasses etc grow there and get the milk and sustain their life from it. And on this abadi land they sometimes build their small hutments or small houses etc. So what these upper caste do, they sometimes take away this banjar zameen or sometimes make that house burn, even to deprive that person the right to shelter or मीन्स टू शेल्टर एक्सेट्रा। तो उसको घर से बाहर निकालने के लिए तो कई बार उनकी लैंड पे इंक्रोचमेंट हो जाती है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क हो कि ये जो बंजार जमीन है या आबादी लैंड है वो इलीगल उसका इंक्रोचमेंट ना हो। देन कास्ट शुड बी एनालिटेड। आपकी और मेरी कन्वर्सेशन में कोई कास्ट हो ही ना, आई डू नॉट सी माई स्टूडेंट विद द एंगल ऑफ कास्ट, कोई भी कास्ट को कोई भी रीजन को रिलीजन को आई डू नॉट सी दैट। सिमिलरली यू डू नॉट आइडेंटिफाई मी विद द कास्ट। तो इसीलिए एजुकेशनल प्रोफेशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन लोअर कास्ट का हर फील्ड में जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर आयुष खोबड़ा भी होने चाहिए, जज राधेश्याम खोबड़ा होने चाहिए, मतलब लोअर कास्ट के प्रोफेसर जजेस हीरोज भी होने चाहिए, क्रिकेटर्स भी होने चाहिए, फुटबॉलर्स भी होने चाहिए। तो वो एवरी फील्ड में आगे आने चाहिए सो दैट दे बिकम एब्सोल्युटली इक्वल टू दी अदर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। तो पेट्रियार्की के लिए हमें क्या करनी चाहिए, ये तो सारे कास्ट और क्लास के रिफॉर्म्स थे, तो वुमेन को भी हर चीज में आनी चाहिए, बीट कॉर्पोरेट बोर्ड्स और एमपी एमएलए जुडिशरी दे शुड बी इक्वली देयर। देन सेक्स एजुकेशन हमें देनी चाहिए एंड वी शुड नीड टू ट्रेन कंसेंट। जैसे पिंक मूवी में देखा होगा नो मीन्स नो, तो वो तो एब्सोल्युटली ट्रेन करना ही हमें अपने यूथ को कि विदाउट कंसेंट यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप। देन सेल्फ डिफेंस टू दी वुमेन शुड बी टॉट कि अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स, क्योंकि हर जगह पुलिस हर जगह पीपल नहीं पहुंच सकते। देन वी नीड टू नॉर्मलाइज दी हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट जेंडर्स एंड सेक्सेस, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या मेल फीमेल हो, उनमें हेल्दी रिलेशन हो सकते हैं, लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, कोलीग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर वो बात कर रहे हैं तो एक वो बुरा रिश्ता ही होगा या लव का ही रिश्ता होगा या वैसा रिश्ता होगा। तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम इस चीज को नॉर्मलाइज करें, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करें और टेक्नोलॉजी को जेंडर के पास पहुंचाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट दिस स्कूटी, by using this simple technology of scooty, women can go to work, to go for getting education, to go to the market to purchase certain things etc. Scooty has really empowered the women. They do not need to dependent on the male family member to visit these kind of places, so their security concerns is also get to some extent resolved by scooty. और you can see about this laptop and mobiles, अगर वो माँ बाप नहीं भेजते उनको in the far away places for higher studies, they can get the online education through laptops and mobiles. तो टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए to for the women empowerment. That is basically the point here. So now coming to the draft national science and technology policy. So this has been put by the Department of Science and Technology on its website, and it would replace the Science, Technology and Innovation Policy of 2013. So first let me tell you about the context of this policy, then only you would able to understand this scheme. All right. See, science, technology and innovation. First, for economy, it is absolutely necessary. The whole capitalism system is based on technology and innovation. In the previous class, I may have told you that there was industrial revolution which has replaced this manual labor, or you can say goods and services produced by the hard work of an skilled labor. It has been replaced by the machines. पहले shirts टेलर प्रोड्यूस करता था, अब machines कर देती हैं. You do not need the tailor to produce t-shirts and machines etc. ठीक है, बस एक पर्सन को अगर वेल्थ जनरेट करनी है
पैसे कमाने हैं, दो चीजें करनी है, एक मशीन्स बिल्ड करनी है, उस मशीन से लैक्स ऑफ टी शर्ट्स प्रोड्यूस करो, और आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग करनी आनी चाहिए, उसको बेच डालो, पैसा ही पैसा आपकी जेब में, पैसा ही पैसा आपकी जेब में। दैट इज वाज द सिंपल फंडा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस मशीन्स को अपडेट करते रहना, इसको और बेटर बनाना, और ऑटोमेटिव बनाना, और पावरफुल बनाना, दैट वाज द बेसिकली द पार्ट ऑफ इनोवेशन। ओके, तो इनोवेशन बेसिकली लेट्स टू वेल्थ क्रिएशन, दैट इज द सिंपल प्रिंसिपल वी आर लर्निंग हियर। आप इनोवेट करो, वेल्थ क्रिएट करो। लेट मी गिव यू द एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझ जाओगे। आप सभी ने स्टोरीज सुनी होंगी, यू मे हैव हियर्ड द स्टोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड, दैट दिस पर्सन थॉमस एडिसन he has failed thousand times in producing इलेक्ट्रिक बल्ब। सुनी है ना ये सबने स्टोरी, इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस करते करते 1000 टाइम्स फेल हुए, एंड आफ्टर 1000 टाइम्स ही हैज प्रोड्यूस दिस इलेक्ट्रिक बल्ब। कभी सोचा है कि इनको इतना मोटिवेशन कहां से आता था? फ्रॉम वेयर ही गेट द मोटिवेशन? मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, पहला अटेम्प्ट भी नहीं दिया होता एंड दे फील डिमोटिवेटेड, एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया यूपीएससी में, फिर भी डिमोटिवेटेड फील करते हैं, फियर आती है, एंजाइटी आती है कि क्लियर होगा कि नहीं होगा। पीपल हु आर इन फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट सेक्टर, दे आर इन सेमी डिप्रेशन स्टेज, रात को नींद नहीं आती, रात को 12 बजे बेड पर जाते हैं और 7 बजे सुबह उठते हैं, मतलब 12 बजे बेड पे गए, 7 बजे तक नींद ही नहीं आई, सुबह 7 बजे तक नींद ही नहीं आई, और अलार्म कितने का लगाया था? 7 बजे का। अब अलार्म बंद करके सोते हैं, फिर दिन में 3 बजे उठते हैं, फिर से डिप्रेशन, फिर से दिन भर यही होता है। जो फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट में है उनकी एज होगी 28, 29, मैरिज का प्रेशर है, सेटलमेंट का प्रेशर है, दोस्त कामयाब होते जा रहे हैं, दोस्तों की शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, कितना प्रेशर वो फील कर रहे हैं। तो 4 और 5 अटेम्प्ट में इंसान की हालत पतली हो जाती है। आप सोचो कि थॉमस एडिसन 1000 टाइम्स फेल हो रहे हैं, मतलब आपने 4 या 5 बार फेलियर की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं बता रहा हूं आपको, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, अ पर्सन लूज हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो देता है वो, उसको लगता है कि एम आई वर्दी इनफ टू रिमेन इन द सोसाइटी और नॉट, सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो देता है कि मेरे में कुछ टैलेंट है भी है कि नहीं, मेरिट है भी है कि नहीं। एक अटेम्प्ट में हमें इतना झटका लग जाता है, और ये इंसान 1000 टाइम्स फेल हो रहा है। और इसकी मोटिवेशन क्या है, इसकी क्या है कि वो लगा हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब बना के ही रहूंगा मैं। क्यों लगा हुआ है? क्या संगी है, पागल है कि भाई बस एक बार लग गया तो मैं बना के हटूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज वेरी रैशनल पर्सन, साइंटिस्ट है वो, साइंटिस्ट के साथ साथ वो बिजनेसमैन है। वो क्या है? बिजनेसमैन भी है थॉमस एडिसन। ही इज रिसर्चर कम साइंटिस्ट कम एंटरप्रेन्योर। उसको पता है ये मैंने बनाया नहीं और पैसे कमाए नहीं, इट इज गोइंग टू बी इनोवेशन, इट इज गोइंग टू बी अ बिग इनोवेशन इन दिस वर्ल्ड, और यहां से मुझे मिलेगी वेल्थ। तो वहां वेल्थ कितनी मिलेगी? अंधा पैसा, अंधा मतलब thousands of crore he would earn। वो सपना, that dream of earning huge wealth was driving Thomas Edison to experiment thousand times। ये स्टोरी कोई नहीं सिखाता हमें स्कूल्स में कि इस वेल्थ को क्रिएट करने के लिए वो इतनी मेहनत करता। स्टीव जॉब्स, he was working hard to develop mobile apps, mobile operating system, mobile smartphones, labs, etc. He was working hard. Why? To create a company of 1 lakh crore. Oh, sorry, 100 lakh crore, 100 lakh crore worth company, 100 lakh crore rupees company he wants to create। तो ये जो वेल्थ का मोटिव है, यही आपको इनोवेट करने के लिए मोटिवेट करता है। तभी एप्पल इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है, तभी इजराइल इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तभी जापान करता है, तभी कोरिया करती है, बिकॉज टू बिल्ड दिस वेल्थ, टू बिल्ड दिस वेल्थ। तो आप जानते हो थॉमस एडिसन ने इसके बाद क्या किया? इलेक्ट्रिक बल्ब के बनाने के बाद ही हैज रजिस्टर्ड अ कंपनी नेम्ड एडिसन कंपनी। एडिसन कंपनी बनाई, पूरे अमेरिका का उनको ठेका मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ही गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू लेड आउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग, फॉर फैक्ट्रीज,
and also for residential houses of rich and powerful people. पूरे अमेरिका का उसको मिल गया and he earned thousands of crore rupees from in this invention. So and any guesses, do you have which is the company he's founded? I've given you the name Edison company, but अब उस कंपनी का नाम क्या है? मैं बताऊं आपको उस कंपनी का नाम क्या है? जनरल इलेक्ट्रिक. आपने ये नाम सुना होगा, जनरल इलेक्ट्रिक, जिसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया. ये it is 100-year-old company and it has been founded by Thomas Edison. Its name has been changed to General Electric later on. और इसके कंपटीटर थे टेस्ला, निकोलस टेस्ला. थॉमस एडिसन ने डायरेक्ट करंट इन्वेंट किया था, इन्होंने अल्टरनेटिव करंट इन्वेंट किया था. और टेस्ला भी कोई चैरिटी के लिए यहां पे नहीं आए थे कि ह्यूमैनिटी को मेरे को लाइट टर्न करना है. उन्होंने भी कंपनी बिल्ड की जो आज किस नाम से जानी जाती है? वेस्टिंगटन हाउस. वेस्टिंगटन हाउस के नाम से जानी जाती है. एंड इट इज हिज इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो led to thousands of crore wealth generation for the Westinghouse. तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया कि हमारी इकोनॉमी को बूम करना है तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इज मोस्टली इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब उसके लिए क्या चाहिए? साइंटिफिक टेम्पर चाहिए. लुक एट द इजराइलीज, everyone is scientist there, so everyone has the scientific temper there. How they, this small country of 90 lakh people are ruling this world. The Jews community, only 90 lakh people. We are Hindus, more than 100 crore. Muslims, more than 200 crore. Christians, more than 300 crore. But they are being ruled by this small community of Jews because of scientific temper. See this Sikh community, Sardar. Again, scientific temper laid out by the founders of this religion, that is Nanak and Gobind Singh. See this small community of few crores, they are also at the always at influential position. चाहे प्राइम मिनिस्टर होंगे, सीएम होंगे, कंपनीज के होंगे, साइंटिस्ट होंगे, टीचर्स होंगे, they would always at the influential position. कभी आप किसी सरदार को भीख मांगते हुए नहीं देखोगे, कभी किसी सरदार को भीख मांगते हुए नहीं देखते होंगे किसी भी जगह पर. मैं आपको डेयर करता हूं, कभी आपने किसी सरदार को भीख मांगते हुए देखो? हिंदू मिलेंगे आपको, मुसलमान मिलेंगे, क्रिश्चियन मिलेंगे, लेकिन कोई सरदार नहीं आपको मिलेगा. Why? Because of scientific temper. Because Sikhism is a new religion, 1500 AD में found हुआ है. Superstitions etc. is absolutely prohibited in this religion. Jews, why it being, despite being an ancient religion, is able to revolutionize itself, reform itself on the modern lines of scientificism, objectivism etc. तो अब देखो स्मॉल कम्युनिटी रूल कर रही है. आपको यकीन नहीं हो रहा? Do you know the caste of Albert Einstein? To which religion he belongs? He is a Jew. Albert Einstein, he is a Jew. All the major companies, whether it is Google, whether it is Goldman Sachs, आपने इनका नाम सुना हो, Tesla etc., all are funded by Jewish people. Jews are as equal to Parsis of India. जैसे टाटा, वाडिया एक्सेट्रा सब रूल कर रहे हैं इस देश पे, वैसे ज्यूज किसको रूल कर रहे हैं? यूएसए को. जिसको वो चूज करते हैं वही प्रेसिडेंट बनता है. इन 2016 they have picked Donald Trump and Donald Trump become the president because media outlets are owned by Jews, companies are owned by Jews, the scientists in the labs of the USA are Jews, the investment bankers in the USA are Jews. So we need to reform ourselves, whether we are Hindu, Muslim etc. We should be first scientist, then we should be following any other religion at all. Okay. यहूदी जिसको बोलते हैं जन्नत हिंदी में, यहूदी लोग. So you know the context. Okay, so let us see. For this we need to develop a innovative framework in this society, polity, economy etc., so that science and technology and innovation could be flourished. Let us see whether this draft technology would able to do this or not. So it would bring changes through short, medium and long term mission, and want to promote research and innovation,
and identify strength and weakness of our ecosystem. I think you all are understanding these general points कि क्यों जरूरी है. I have already explained. So important provisions of this economy. तो this comes the role of IAS officer. अगर IAS officer कोई policy बनाता है तो वो इस तरीके की दिखेगी. How you can see this? बिकॉज आईएएस ऑफिसर को जर्नलिस्ट वे में सोचना है, उसको एवरी एंगल से सोचना है. सोशलिटी के पर्पस से, पॉलिटी के पर्पस से, इकोनॉमी के पर्पस से, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के पर्पस से एक्सेट्रा. तो अब देखो कि आप all the perspectives you would see in this policy, क्योंकि सबसे पहला ही पॉइंट आ रहा है इक्विटी एंड इंक्लूजन का. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी में इक्विटी एंड इंक्लूजन चल रहा है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट इसमें चल रहा है. क्या चल रहा है कि जेंडर इक्वालिटी शुड बी देयर इन द रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एटलीस्ट 30% सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, एंड स्पाउस बेनिफिट शुड बी गिवन टू द LGBT community, so that is like pregnancy leave, paternity leave, maternity leave, etc. Then their rights should be encouraged and women participation in science and technology sector should be enhanced कि IITs में, एम्स में एक्सेट्रा वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़े. अभी क्या है 5% के अराउंड है, इसको कम से कम 30% के पास जाने चाहिए कि तब IITs और ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट हो जाएगी लड़कों के लिए टू क्लियर दैट एग्जाम. देन चाइल्ड एंड एल्डरली केयर के लिए भी किया गया है कि फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग होनी चाहिए सो दैट चाइल्ड केयर कुड बी डन. Then paternity leave, parental leave should be given to both male and female. Then research institution should have डे केयर सेंटर्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय की क्रच की फैसिलिटी हो. अगर कोई छोटा बच्चा 1-2 साल का वहां पे छोड़ दो, वहां पे खेलता रहेगा और माँ या बाप वहां पे काम करते रहेंगे. डिसेबल्ड पीपल के लिए भी स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंजेस होने चाहिए कि दे शुड बी आल्सो लुक्ड विद इक्वालिटी, डिग्निटी एक्सेट्रा. आप स्टीफन हॉकिंस ये वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट थे जिनका भी डेथ हुई है. ही वाज एन डिसेबल्ड पर्सन बट ही वाज अ रिनोन्ड साइंटिस्ट. तो डिसेबल्ड पर्सन भी साइंटिस्ट हो सकते हैं. तो हमें ये जो एटीट्यूड है कि वो किसी काम की नहीं है, वैसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक रैंप्स वगैरह एस्टेब्लिश करने चाहिए क्योंकि व्हील चेयर इजिली मूव कर सके. देन जैसे आईएएस ऑफिसर को एक ही कार्डर दे दिया जाता है अगर वो मैरिड हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से सेम मैरिड पीपल को एक ही डिपार्टमेंट देना चाहिए. जैसे आप लवासना जाओगे ना तो वहां पे क्या होता है, लवासना इज लाइक अ शादी.com ऑफ, जीवनसाथी.com ऑफ आईएएस आईपीएस आईआरटीएस ऑफिसर. वहां पे दूल्हा दुल्हन देखने लग जाते हैं कि किसका फेवरेबल कार्डर है. किसी की पोस्टिंग मान लो नागालैंड में हो रही है बट लड़की की पोस्टिंग राजस्थान में हो रही है, तो वो सोचता है कि मैरिज कर लो, राजस्थान पोस्टिंग मिल जाएगी. तो लवासना समटाइम्स एक्ट एज एन शादी.com फॉर द आईएएस सिलेक्टेड पीपल. तो कई बार तो ये होता है कि अब एग्जाम क्लियर कर लिया, उम्र भी होगी 28-29 की, यही लड़की देख लो, मियाँ बीवी कमाएंगे, प्रोफेशनल होंगे, 50-60,000 मेल आदमी कमाएगा, 50-60,000 औरत कमाएगी, मतलब मेल एंड फीमेल कमाएंगे, 1 लाख की सैलरी हो जाएगी, काम चल जाएगा. देन ओपन साइंस पॉलिसी, दिस इज बेसिकली द नीड टू डिस्कस. इसको साइंटिफिक नॉलेज के लिए प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितने भी साइंटिफिक जर्नल्स हैं, जितने भी साइंटिफिक न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं जहां पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आर बीइंग पब्लिश्ड देयर, दैट वुड बी प्रोवाइडेड अवेलेबल फ्रीली टू एवरीवन. कि किसी का भी कोई भी साइंटिफिक टेम्पर है, चाहे कोई बिहार के विलेज में है या नागालैंड के विलेज में है या कोई तमिलनाडु के विलेज में है, जम्मू कश्मीर के विलेज में है, वो भी इसको फ्रीली एक्सेस कर सके. गवर्नमेंट परचेज करेगी और लोगों को फ्रीली प्रोवाइड करेगी. दैट कुड बी डन इजिली बाय द डिजिटल टेक्नोलॉजी. गवर्नमेंट को एक खरीदना है, वेबसाइट पे अपलोड कर दे, सभी अपने आप डाउनलोड कर लेंगे. तो उसी के लिए साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश की जाएगी. सारा डाटा उसमें डाल दिया जाएगा और वहां से लोग डाउनलोड कर सकते हैं. या आप इसको कह लो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की तरह काम करेगी. या यू कैन सी दिस लाइक मल्टीपल टेलीग्राम चैनल्स आर देयर where you can download any coaching institute material. So this would be act like on a same manner. Research and education के लिए education research center, collaborative research center and framework would be developed. ये क्यों जरूरी है? देखो, our social economic challenges could also be resolved by the technology. कैसे कि high pollution है, because of technology we get solar panels.
हम लद्दाख में या नॉर्थ ईस्ट में या इन नक्सलाइट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, बट बिकॉज ऑफ सोलर पैनल्स हम वहां पे इजिली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाए. सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन रिजॉल्व अवर सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस. दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ रिसर्च सेंटर्स आर इंपॉर्टेंट. तो वो इनपुट देंगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को और वो पॉलिसी में ऐड हो जाएगा एंड दैट आइडिया कुड बी इंप्लीमेंटेड. उसका एग्जांपल दूंगा मैं आईआईटी बॉम्बे से, शायद एक मुंबई से थे एक प्रोफेसर. तो उन्होंने एक डेवलप किया था कि प्लास्टिक वेस्ट कुड बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड्स. तो वो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को आइडिया पसंद आया एंड दे स्टार्ट यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन. तो उससे क्या हुआ कि रोड्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई. जो प्लास्टिक वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो रेनफॉल आती है तो वो उसको रिपेल कर देता है. तो दैट इज हाउ दिस रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई दिस एंगेजमेंट विद पॉलिसी मेकर्स इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए एक वेबसाइट भी क्रिएट की जा सकती है वेयर इनोवेशन आइडिया कुछ भी पुट देयर एंड this ideas could be implemented at everywhere. Then we want to build technology कि हम रेलवे या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करें. क्योंकि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वी कैन मैन्युफैक्चर आवर ओन फोन्स, आवर ओन फ्रिज, आवर ओन टीवी एक्सेट्रा. हमें चाइनीज मोबाइल्स पर एक्सेट्रा पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज बेसिकली आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम. एंड आल्सो अगर हम स्ट्रेटेजिकली सेल्फ रिलायंट है, अगर कल को चाइना के साथ वॉर हो जाए, अगर वो मोबाइल्स एक्सेट्रा की लैपटॉप्स की सप्लाई बंद कर दे, वी मे गेट एडवर्सली अफेक्टेड. जैसे कोरोना वैक्सीन है, हमने खुद बनाई. वी आर श्योर दैट कि अगर अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, चाइना सेक्टर ना प्रोवाइड करे, वी आर एबल टू प्रोड्यूस इट इन लार्ज क्वांटिटी एंड सप्लाई टू आवर पॉपुलेशन. तो इसीलिए स्ट्रेटेजिकली भी इनोवेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है. तभी हमें रिसर्चर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाने की जरूरत है. तो भी आपको मैं एक बात बताऊं, ओनली 0.6% ऑफ जीडीपी वी आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. 0.6% ऑफ जीडी का मतलब है कि अगर हम 100 रुपीज कमा रहे हैं, उसके सिर्फ 60 पैसा, ओनली 60 पैसा वी आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. चाइना अराउंड 4 रुपीज, यानी 4% ऑफ जीडीपी. इजराइल 6%, अमेरिका अराउंड 3%. दे आर स्पेंडिंग ऑन दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तभी देखो अमेरिका में कितने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनते हैं. चाइना इज आल्सो डेवलपिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इजराइल तो सबसे आगे है ही. तो ये इनोवेशन क्या है कि बहुत टाइम ले लेती है, बहुत पैसा मांगती है. तो इसीलिए ये एक्सपेंडिचर बढ़ाना जरूरी है. इवन प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो लैगिंग बिहाइंड इन एक्सपेंडिचर. टाटा, अंबानी, दे आर आल्सो नॉट इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि नए प्रोडक्ट डेवलप करें, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करें. वो भी कर नहीं रहे, वो भी अमेरिका वगैरह पे डिपेंडेंट है. आप देखोगे ओनली 300 कंपनीज, ओनली 300 इंडियन कंपनीज, 300 कंपनीज हैव फाइल्ड पेटेंट्स लास्ट ईयर. और जानते हो चाइना की कितनी कंपनीज ने पेटेंट फाइल किए? 40,000 चाइनीज कंपनीज पेटेंट्स हैज बीन फाइल्ड. आप देखोगे कि ईच ईयर वी फाइल्ड अराउंड 40,000 पेटेंट्स. और चाइना कितने करता है? 10 लाख पेटेंट्स फाइल करता है. यूएसए अराउंड 8 लाख. आप देखोगे कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, यहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. यहां पे कट कॉपी पेस्ट चलता है कि पीएचडी कर रहे हो, कट कॉपी पेस्ट करके काम चला लो. लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं चलता. वहां पे सपोर्ट किया जाता है. 58 ईयर्स की एज में भी पीएचडी कर सकते हो. एज को मैटर नहीं करती, वहां पे आपका काम मैटर करता है. तो हमारे रिसर्चर्स कहाँ काम कर रहे हैं? इसराइल में, अमेरिका में, उनके लिए काम कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई पेटेंट्स फाइल्ड बाय द नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर 5 टाइम्स हायर देन द रेसिडेंट इंडियंस. जो यहां पर रिसर्च हो रही है और जो इंडियंस बाहर रिसर्च कर रहे हैं, वो 5 टाइम्स ज्यादा पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं. तो गूगल के लिए, अडोब के लिए, इनके लिए रिसर्चेस कर रहे हैं वो, और इनके पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं. अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दें तो यहाँ पर वो अपनी एक कंपनी बनाएंगे थॉमस एडिसन की तरह, और देश को भी फायदा होगा उससे. उनको भी वेल्थ जनरेट होगी और हमें भी, देश को भी फायदा होगा. एंड दिस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड वुड डू दी मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग थिंग. तो उसके बाद है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स. फटाफट ये फैक्चुअल सा डाटा है, आरबीआई ने प्रिपेयर किया है, तो मैं फटाफट बता देता हूं. तो इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं जो मेजर करेगा कि कितना स्प्रेड हुआ है, कितना डीप गया है, कि कितने लोग फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं और कितने ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं.
कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं। सो 5 इंडिकेटर आर देयर, पेमेंट एनेबलर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। तो आप इस इन्फोग्राफिक में ज्यादा करोगे। इंटरनेट पेमेंट एनेबलर्स क्या है कि आपको पेमेंट करनी है डिजिटली, तो इंटरनेट चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड, आपके पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आपको पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेटीएम वैलेट होना चाहिए, फास्टैग होना चाहिए। दुकानदार के पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बैंक ब्रांचेस में होना चाहिए, एटीएम होना चाहिए, उसके बाद पीओएस टर्मिनल होना चाहिए, क्यूआर कोड होना चाहिए। पीओएस टर्मिनल अभी बताऊंगा क्या होता है। पेमेंट परफॉर्मेंस, भाई कितनी पेमेंट परफॉर्मेंस हो रही है, कितनी वैल्यू की हो रही है, अभी बताता हूँ आपको ये क्या है, कितनी वैल्यू है। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, उनके साथ कंप्लेंट्स हो रही हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, या एजुकेशन उनको दी जा रही है, क्या हो रहा है। तो इस बेसिस पे उन्होंने किया है। तो इट हैज बीन फाउंड दैट डिजिटल पेमेंट हैज बीन ग्रोन बाय अराउंड ट्वाइस, 100% की ग्रोथ यहाँ पे आ रही है। तो उसके फैक्ट्स भी देखो, यूपीआई 82% वॉल्यूम, यानी 2 बिलियन ट्रांजेक्शंस आर डन पर मंथ, 2 बिलियन ट्रांजेक्शन, 200 करोड़। 99% वैल्यू जंप, अराउंड 1 लाख करोड़, अराउंड 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ रुपीज 1 लाख करोड़ वैल्यू ट्रांजेक्शन आर बीइंग डन पर मंथ ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म। हर कोई यूज कर रहा है। तो स्टार्टिंग में 19 बैंक्स थे, अब 174 बैंक्स यूपीआई सर्विस इशू कर रहे हैं, और 51 लाख पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स डिप्लॉयड किए गए मर्चेंट्स द्वारा। भी बताता हूं मैं ये क्या है। और इंडिया रैंक 7th इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन वर्ल्ड। तो यूपीआई इज अ वेरी सक्सेस स्टोरी एंड इट हैज बीन डन अंडर द लीडरशिप ऑफ रघुनाथ राजन। रघुनाथ राजन क्या है, अगेन अ स्टोरी ऑफ इमिग्रेंट, ब्रेन ड्रेन, यूएसए में जाके प्रोफेसर है, वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे टैलेंट यूज कर रहे हैं। जब इंडिया बुलाया गया तो इन 4-5 years ही हैज गिवन दिस कंट्री अ गिफ्ट ऑफ यूपीआई। आप देखो, सेम पर्सन, अ साइंटिफिक पर्सन, because of his merit, because of his capabilities, he was able to offer this kind of innovative digital payment system, very simple, very effective to Indians। तो साइंटिफिज्म का देखो कैसे हमारी ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा को रिजोल्व कर दिया। तो इस तरीके से देखो दोनों चीजें कैसे लिंक हो रही हैं यहाँ पे। और अभी व्हाट्सएप को भी अप्रूवल दे दी गई है टू लॉन्च यूपीआई इन ग्रेडेड मैनर। क्योंकि देखो व्हाट्सएप क्या है ना, व्हाट्सएप का क्या है कि इट मे नॉट ऑफर द बेस्ट क्लास मैसेजिंग सर्विसेज, टेलीग्राम में भी बेटर, स्नैपचैट में भी बेटर, बट व्हाट्सएप यूनिक पॉइंट इज इट इज यूनिवर्सली अवेलेबल। आपके बड़े बुजुर्ग, जवान, लड़के लड़की सब इस पे अवेलेबल है, एवरीबॉडी इज ऑन व्हाट्सएप। तो अगर व्हाट्सएप ने लॉन्च कर दी तो इट मे रिप्लेस पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एक्सेट्रा फ्रॉम द मार्केट, उसकी मोनोपोली बन सकती है। तो इसीलिए बहुत डर रहे हैं व्हाट्सएप से कि अगर व्हाट्सएप मार्केट में आ गया डिजिटल पेमेंट के तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब खत्म हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई देयर इज अपर लिमिट हैज बीन इंपोज्ड कि आप 2 करोड़ से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हो सकते। देन आल्सो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन हैज कैप 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ट्रांजैक्शन ऑन यूपीआई। इसका मतलब क्या है कि फोन पे और गूगल पे, अभी इन दोनों की वर्चुअल मोनोपोली है। 80% ऑफ ट्रांजैक्शन इज कैरिड आउट ऑन दीज टू प्लेटफॉर्म्स। 80% ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इज कैरिड आउट ऑन दीज टू प्लेटफॉर्म। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये कह रही है, व्हाट इफ फोन पे सो ऐप गॉट ब्लॉक्ड, गॉट हैक्ड, is not able to run, crashed etc, then people would not able to carry out their digital transaction। इसीलिए ओवर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए, एंड आल्सो नॉट टू क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट, एंड आल्सो नॉट टू गेट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन पीपल, फॉरेन कंपनीज ओन्ड बीम यूपीआई प्लेटफॉर्म, दिस 30% कैप हैज बीन इंट्रोड्यूस कि आप 30% से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर नहीं होंगे। कंपटीशन रहेगा मार्केट में। सेकंड, ओवर डिपेंडेंस नहीं होगी। थर्ड, ओवर वल्नरेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि क्रैश हो गया, हैक होगी तो इससे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होगा। इसके नुकसान भी है कि इससे कंज्यूमर की चॉइस जा रही है, बिजनेस की चॉइस जा रही है एक्सेट्रा। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आरबीआई ने क्रिएट किया टू एनकरेज पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बताता हूं कि मैं ये क्या है। आप किसी भी स्टोर में गए होंगे तो वहां पे इस तरीके के प्रिंटर होता है कि आपको प्रिंट दे, इस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट करते हो, वहां से पेमेंट भी हो जाती है।
तो इस तरीके से बार कोड स्कैनर से प्रोडक्ट को स्कैन किया जाता है, वहां से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में जाती है, वहां पे उस प्रोडक्ट का नाम होता है, प्राइस होती है, फिर उसका बिल कट जाता है, यहाँ पे आप पेमेंट देते हो, उसकी आपकी रिसिप्ट दी जाती है। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये था ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, ये पुराना स्ट्रक्चर था, ये फिजिकल स्ट्रक्चर था। अब नया आ गया डिजिटल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही सिंपल है। दैट इज न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। एक 10 रुपीज का क्यूआर कोड लगाओ और कंज्यूमर के पास मोबाइल होगा, स्कैन करेगा, पेमेंट कर देगा। हाउ कॉस्ट इफेक्टिव इट इज, हाउ सिंपल इट इज। मैसेजिंग के थ्रू दोनों को अलर्ट चला जाएगा, कोई रिसिप्ट की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें आप देखो, मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बता दूं, 2 मिनट लगेंगे, आप इंजॉय करोगे। आपको भी ऐसा इनोवेटिव माइंडसेट रखना है जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ। ये आइडिया आया था विजय शेखर शर्मा, जो पेटीएम के ओनर है, क्यूआर कोड का। कैसे आया? वो चाइना गए हुए थे, ही हैज विजिटेड चाइना। तो उन्होंने देखा कि ये बार कोड स्कैनर से वो कस्टमर के मोबाइल से स्कैन कर रहे थे, और उस कस्टमर के मोबाइल में कस्टमर के बैंक अकाउंट डिटेल्स थे, तो उस बारकोड स्कैनर को वो कंप्यूटर में फीड करते थे, जितने का बिल होता था उससे अमाउंट डिडक्ट कर लेते थे। तो उनको लगा कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव सिस्टम है, अगर इसको हर दुकानदार को देना है, हर छोटे व्यापारी को देना है, हर ठेले वाले को देना है, एवरी स्ट्रीट वेंडर, एवरी in order to enable this digital infrastructure to be provided to every small shopkeeper, every street vendor, etc. I have to do something which makes this process affordable. तो उसने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, कि instead of merchant scanning the code and instead of consumer providing the code, यहां पे क्या था कि consumer कोड प्रोवाइड करता था और मर्चेंट स्कैन करता था। तो उन्होंने रिवर्स कर दिया कि कंज्यूमर स्कैन करेगा, मर्चेंट कोड दिखाएगा। तो कोड दिखाएगा, तो दिस प्रोसेस वुड एनेबल मर्चेंट्स टू इजीली बाय दिस चीप कोड, 10 रुपीज कोड, और वो इसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा और इसका मास अडॉप्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ इनोवेटिवली यू हैव टू थिंक आल्सो व्हाइल बीइंग अ सिविल सर्वेंट। आपको ये इनोवेटिवली सोचना है, क्योंकि आपके सामने भी सोसाइटी में आपको दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू वुड बी सीइंग। आप देख सकते हो कि उस प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करूं, ताकि मैं अपनी पॉलिसी में जब मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा उसको इंप्लीमेंट करूंगा और वो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देखो, हर दिल्ली में अगर आप कभी घूमे हो तो आपको पता चलेगा, every shop has this Paytm, every thele wala, every street vendor has this Paytm code because of this innovative mindset of the founder of Paytm। तो इस तरीके से आपको करना है, और ये फैक्चुअल डाटा है आरबीआई का, कि इस तरीके की रिपोर्ट्स वो पब्लिश करती है। यू कैन सी दिस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्विस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, अगर आप आंसर करना चाहो तो कर सकते हो, इफ यू हैव द कैपेसिटी टू आंसर। अगर थके नहीं हो आप, if you are not tired or feeling fatigue, you can answer it. Okay, so that's all for today. We have covered each and every topic today. We have not left any topic today. We have 100% covered the topics which have I decided to discuss today in this class. So we will meet on Sundays 2 p.m. and with new topics, with new themes, and with new discussion. All right, so till then I wish you all the best, very happy learning। और एक मेरे लिंक क्रिएट करते ही, यस, somebody is asking B, yes Deepak, you are right, it is B, so thank you very much to all of you. Those who are new to the platform can join the UPSC guide telegram group, which is mentioned in the description. There you would be informed about the updates, and you can reach out to me also at Mohit Bansal 258. That is the ID of my telegram group. There you can reach out to me. Okay, that is the group I have created there. और एक मेरे लिंक क्रिएट करने से पहले ही लोग डिसलाइक मार देते हैं, और बाकियों को लगता है कि लेक्चर खराब है, और बाकी भी फिर डिसलाइक मार के चले जाते हैं। Nevertheless, that's all